आपको ये फाइनल वीडियो देखनी है अब। सो रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। अब ये जो बच्चे कम ज्वाइन कर रहे हैं, ओनली 20 स्टूडेंट्स आर देयर, वी हैव 29 इन आवर क्लास। सो आप इन 9 बच्चों को बोलिए कि प्लीज ज्वाइन एट अर्लीस्ट पॉसिबल। अगर ज्वाइन नहीं करेंगे और सिर्फ इसके भरोसे रहेंगे कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी एंड देन वी विल लर्न द थिंग्स, सो दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बिकॉज जो लाइव क्लास है उसकी अलग बात है एंड रिकॉर्डिंग की अलग बात है। फिर आपको रिकॉर्डिंग में फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, कभी कभी वो डिफिकल्ट हो सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। I hope everyone had installed these things, Linux and maybe Ubuntu over that, or any other Linux version, or maybe Linux in any other mode like dual mode or standalone OS, right? Then I have told you to create an HTML file that I have already created for you. So anyone having any doubt in this to create hello world file? It's a simple program, so I think you should not have any doubt. Am I right? Yes, sir. Okay, good. So next question is, how can we execute a PHP file? We have discussed this thing in our previous lecture. If anyone is having any doubt in this, you can just go to previous video and see that. Now coming to fifth question, we need to install XAMPP inside Windows and Linux. So if you are on Windows, you have installed XAMPP on that, that is fine. If you are on Linux and you have installed that, that is also good. I actually, some students were asking me that they are not able to install XAMPP on their system if they have installed Ubuntu. So they were not able to install XAMPP on that system, but they tried and find out some errors, and finally they were able to do so. So the only thing, the way you can, and the only thing that can work is you need to uh, do these things continuously. If you are finding any problem, just try to search the solution of that on internet, and hopefully you will get the solution, right? Now coming to sixth question, try running your PHP file after you have installed XAMPP, and we have done that in our previous tutorial, right? We'll come to these things again, but this was just an overview. Now this was the question. We already discussed this thing. How can you stop or start Apache and MySQL server? We also know that, right? And then we discuss ninth and this 10th question. So everybody is aware about these things. This was just a recap of previous tutorial. Kanchan, everything is clear till now? Yes, sir. Okay, good. Akash? Yes, sir. Okay, Rishabh? Yes, sir. Very good. Sivang? Sivangar? Yes, sir. Good. Riya Negi? Yes, sir. Very good. Okay. So we'll start now. What I have done, I have created a learn web dev, this repository on GitHub. I'm sending the link here in chat, right? So what I will do, I have deleted all the previous directories that I have created. Now we will work on this only, right? So what I will do, I will clone this first, git clone, copy the link here. Okay, I am not able to create this directory, permission is denied. Can anyone answer, or can anyone solve this problem for me? Anyone? Sivang, Sir, can you solve? sudo chmod. Very good. We have to use sudo, right? Because we are Yes, sir. inside some directory and we don't have any permission there. So what we have to do? Okay, I am. So it's cloning now. Check ls, and this is inside lamp. And where is this lamp? This lamp is inside. You can use pwd command and see this is inside opt lamp htdocs dashboard lamp and learn web dev, right?
You can also do another thing. We can delete this lamp and create this as a main directory, but we don't have any issue with that. Let it be. Okay. And this is the whole path of this directory, or you can say this is the absolute path of this directory that we are working on right now. We have used this command ls, and you can see there is the file readme.md. I will use cat command to check its content, and this was the content that I put inside this directory, or sorry, this file. So this is saying this repository focus on learning basic front-end and back-end technology, where we will be using HTML, CSS, JavaScript, PHP, and MySQL. So this is our main focus. If we have time, we can learn few other things, but I think even if we learn all these things and do some projects with them and learn Git and GitHub, that will be enough, right? So one thing is that I have created, or I have cloned this directory inside this what we can say inside lamp folder, or we can say htdocs folder. Can we create this directory inside any other directory, maybe inside desktop? Can we do so? Can anyone tell me? Git init. No, I am not saying that. I am saying कि जैसे मैंने अभी ये इसके अंदर किया है, देखो htdocs के अंदर और डैशबोर्ड के अंदर मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है, उसके अंदर क्लोन किया है। क्या मैं इस चीज को डेस्कटॉप के अंदर भी क्लोन कर सकता हूँ? डेस्कटॉप में क्लोन कर सकता हूँ मैं इस चीज को? बताओ, कोई तो बताएगा। कौन बताएगा? जय प्रताप सिंह, आप बताएंगे? नो आइडिया सर। नो आइडिया, ओके। कुणाल, आप बताएंगे? सर htdocs में ही करना पड़ेगा ना, इसमें नहीं हो पाएगा। डेस्कटॉप में क्यों नहीं हो पाएगा? सर कर सकते हैं हम, बट सारी फाइलें हम उसी में बनाएंगे, मतलब htdocs के अंदर ही, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। नहीं तो कर तो सकते हैं हम डेस्कटॉप पर भी। ओके, ठीक है, गुड। तो कर तो हम कहीं भी सकते हैं, ठीक है। हम इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि देखो HTML, CSS की और जावास्क्रिप्ट की फाइल तो कहीं से भी रन कर जाएंगी, लेकिन PHP की फाइल रन करने के लिए हमको इसी के अंदर आना पड़ेगा। किसके अंदर? htdocs के अंदर। कितना अंदर है उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप htdocs के अंदर डैशबोर्ड के अंदर लैम्प के अंदर जैम्प और पता नहीं क्या क्या बना लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट htdocs के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो PHP की फाइल जब इसके अंदर रखेंगे तो तब रन करेगी वो। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सारी फाइल्स यहीं रख लें, तो अच्छी बात होगी। ये बात सबको समझ में आई? यस सर। ठीक है, गुड। तो हमने यहाँ पे रख ली फाइल। अब इसका कंटेंट देख लीजिए, ये वाला कंटेंट है। तो मैं एक नई फाइल यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, hello.html, जो हमने फाइल पहले भी क्रिएट की थी। अगेन वी हैव टू यूज sudo कमांड। मैं भले इस डायरेक्टरी को कुछ ऐसा दे सकता हूँ कि मुझे sudo कमांड का यूज ना करना पड़े, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। हम ये कोशिश करेंगे कि sudo कमांड यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वाली फाइल हमने बनाई है। इसके अंदर शायद से पहले से कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो आई विल चेक दोज फाइल्स। जैसे ये है index.php, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को कॉपी करता हूँ, index.php वाले कोड को। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ इस कोड को। किसके अंदर? लर्न वेब डेव के अंदर जो hello.html वाली फाइल है उस पर कॉपी कर रहा हूँ। फिर से वही दिक्कत, मैं sudo यूज करना भूल जा रहा हूँ बार बार। अब फिर से अगर लर्न वेब डेव के अंदर जाएंगे और वहां चेक करेंगे तो hello.html जो इसके अंदर है, मैं ओपन करता हूँ इस फाइल को। लैंप के अंदर हमें जाना है, वेयर इज htdocs। ये htdocs है, ये डैशबोर्ड है, इसके अंदर हमने एक फोल्डर लैंप नाम का बनाया है, और ये लर्न वेब डेवर, ये वाली फाइल है जो कि अभी अभी बनी है। इसको मैं किसी एक
टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर देता हूँ। दिस इज द टेक्स्ट एडिटर। इतना सबको क्लियर हुआ? इसको ओपन करता हूँ तो ये वाली फाइल है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट इतने में? यस और नो, जल्दी से बताओ। क्लियर है अभी तक? यस Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं एक काम Yes, sir. करता हूँ, मैं इस फाइल के अंदर हूँ, मैं ना स्टार्ट करना चाहता हूँ। सर आपने शायद म्यूट कर दिया है। म्यूट कैसे? ओके, ये म्यूट कैसे हो गया? मैंने तो नहीं किया था म्यूट यार। कोई मुझे म्यूट तो नहीं कर रहा है? अच्छा, अगर ऐसा कुछ होगा तो तुरंत बता देना मुझे, ठीक है? क्योंकि ये स्क्रीन मेरे सामने जो आपको दिख रही है, इस पे नहीं काम कर रहा हूँ मैं, ये साइड में है। यस सर। ठीक है, तो आई विल सी इफ समवन हैज परमिशन फॉर दैट। एक्चुअली परमिशंस का इशू है टीम्स में, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं क्या क्या है इसमें, इस प्रॉब्लम्स। हु कैन प्रेजेंट, अलाउ अटेंडेंस टू अनम्यूट। ठीक है, कोई नहीं, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली ये वाली डायरेक्टरी है, ठीक है? इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है हमें। तो अगर आप एक कदम पीछे जाओगे इससे, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक index.php पड़ी हुई है, तो ऐसा करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं हम। sudo index.php, सॉरी मुझे rm भी लिखना पड़ेगा, रिमूव करना है क्योंकि ये फाइल अब डिलीट हो चुकी है, देखो यहाँ पे नहीं है। तो वेब डेव के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे एक फाइल पड़ी हुई है hello.html। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक तो मैंने पूरा पाथ अभी मैंने आपको दिखाया किस तरीके से ओपन की थी फाइल, ऐसे डबल क्लिक करके ओपन की थी। ठीक है, हाँ ना बोलते रहो बीच में। देखो मेरे को ये स्क्रीन दिख रही है, सिर्फ आप नहीं दिख रहे हो अभी। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये वाली स्क्रीन दिख रही है। तो अब देखो यहाँ पे ना ये जो यूआरएल है, ये यूआरएल क्या कर रहा है, ये पूरा एब्सोल्यूट पाथ है, ऑप्ट लैम्प htdocs और पूरा पूरा पाथ दे रहा है। इसकी जरूरत नहीं हमें। हम सर्वर स्टार्ट करके क्या काम कर सकते हैं, हम लिखेंगे लोकल होस्ट, इतने से हम किसके अंदर पहुंच जाएंगे, इतना लिखने से हम इस htdocs सॉरी डैशबोर्ड के अंदर पहुंच जाएंगे। ये बात आ रही समझ में? यस सर। यस सर। अब इसके आगे दो फोल्डर है, लैम्प एंड लर्न वेब डेव, इनके आगे जाना है हमें। तो यहाँ पे लिखो लैम्प। अब लैम्प से हमको ये डायरेक्टरी मिल गई। ये डायरेक्टरी हमको क्यों मिली, क्योंकि हमने यहाँ पे एक फाइल नहीं रखी है। उस फाइल का नाम क्या होगा? अगर आप चाहते हैं ऐसा ना दिखे आपको, ये जैसे ओपन होके दिख रहा है पूरा का तो पूरा, इंडेक्स इंडेक्स रखनी पड़ती है। ठीक है, हमने नहीं रखी वो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमें जरूरत नहीं है उसकी। तो लर्न वेब डेव के अंदर जाएंगे, लर्न वेब डेव के अंदर गए तब भी हमको hello.html वाली फाइल दिख रही है। इसको क्लिक करेंगे तो ये आ गया कोड हमारा। आ रही है बात समझ में? यस सर। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें कि लैंप नहीं चाहिए हमें, तो आप ये जो लर्न वेब डेव वाला है इसको बाहर निकाल सकते हैं यहाँ डैशबोर्ड के अंदर। अभी ड्रैग तो नहीं हो रहा है, बट व्हाट आई विल डू, आई विल यूज दिस टर्मिनल टू डू ऑल दीज थिंग्स। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, इससे एक स्टेप बाहर निकलते हैं। तो इसके अंदर ये है लैंप वाला। अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं यहाँ से, अगर आप इसको यहाँ से मूव करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, मूव कमांड यूज करनी पड़ेगी। sudo मूव कमांड, और किसको, लर्न वेब डेव को निकाल के कहाँ रखना चाहते हैं आप, ऑप्ट लैम्प के अंदर, उसके अंदर htdocs का फोल्डर बना हुआ है और उसके अंदर डैशबोर्ड का फोल्डर बना हुआ है। तो मैं यहाँ डालना चाहता हूँ इसको।
आ गया होगा शायद से, ठीक है। अब ls करेंगे तो यहाँ से गायब हो गया, दिख रहा है आपको? यस सर। अब मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगा तो मुझे यहाँ फोल्डर दिख जाएगा। कहाँ पे? ये देखिए, लर्न वेब डेव। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही, लैम्प और लर्न वेब डेव दो फोल्डर रखने का कोई फायदा है नहीं, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। किसको? लैम्प वाले को। ये वीडियो आप बाद में भी देख सकते हैं अगर अभी आपको लगे कि फास्ट चल रहा है तो। और अब हम मूव करेंगे लर्न वेब डेव के अंदर, ls करेंगे तो आपको hello.html इसके अंदर दिख जाएगा। क्लियर है ये बात सबको? यस सर। ये समझ में आ रहा है ना? अब इसको देखो, कुछ भी नहीं है ये। कहाँ पे गड़बड़ है? क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे? मैं किसी से पूछता हूँ, किससे पूछूं? ज्योति बिष्टा बताओ, क्या करना पड़ेगा मुझे कि ये सही चल जाए? इस यूआरएल में क्या चेंज करूं? ज्योति सुन रही हैं आप? हाँ, ये बताओ मुझे इस यूआरएल में मुझे क्या चेंज करना चाहिए कि ये सही चले? नहीं पता? नो सर। पंकज बताओ, पंकज सिंह, इस यूआरएल पे क्या करूं मैं कि चल जाए? सर पंकज बोल रहा था कि उसे आवाज नहीं आ रही, केवल वीडियो दिख रही है और केवल उसी के साथ हो रहा है शायद ऐसा। ओके, अरे पंकज जी, अच्छा तो मैं भी पंकज से पूछ रहा हूँ। पंकज ऐसे कैसे चलेगा काम? अपना सिस्टम का देखो यार, हेडफोन लगा के देखो, हटा के देखो, सिस्टम की आवाज बंद करके खोल के कुछ भी देखो, ऐसे कुछ करो। ऐसे पंकज को बोल दो आप लोग, अगर पंकज को अभी भी हाँ आवाज नहीं सर आ मैं मैसेज कर रहा हूँ। रही। ठीक है, ऋषभ, रोहित आप बताओ, इस यूआरएल पे मैं क्या चेंज करूं कि ये सही तरीके से चले? इस यूआरएल में क्या बदलाव किया जाए? जो अभी मैंने प्रीवियस स्टेप लिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये चीजें की मैंने सारी की सारी, तो मैं यहाँ पे क्या करूं कि ये सही चले? आवाज नहीं आ रही है किसी की। रोहित कहाँ गए तुम? यही हूँ सर, यही हूँ तो आंसर तो दो, यही तो हो, पर तुम्हारा सर। बोलने का वो फायदा उसको क्या है? फाइल को नहीं सर। हाँ जी सर, बोलो। सॉरी सर। सर फाइल को मूव करना पड़ेगा शायद उस जगह से, मे बी वो प्रॉब्लम हो। अरे फाइल तो मूव कर दी मैंने फाइल मूव करती, उसके बाद तो पूछ रहा हूँ यूआरएल में क्या बदलाव करूँ। यूआरएल में चलो सर। जल्दी, एक एक झटके में आंसर आना चाहिए। सागर सिंधु आप बताओ। प्लीज सागर बताइए जल्दी से, क्या चेंज किया जाए यहाँ पे? अच्छा किसी और से पूछता हूँ, और कौन बताएगा, और कौन बताएगा? शिवांग गर्ग आप बताओ। सर पता नहीं। पता नहीं यार, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। पता नहीं वाला जवाब तो बहुत गलत है। कंचन आप बताइए। सर अगर आपने कमांड से लैंप हटाया है तो फिर यूआरएल से भी तो लैंप हटाना होगा ना? यस देखो ये सर। हुई ना बात, देखो अब चला। देखो इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है, यही तो करना था। तो बच्चों ध्यान दो क्या हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे वही दे रहे हैं जो पाथ है हमारा, तो अब आ गया हमारे पास सब कुछ जो चाहिए था हमें, ठीक है। ये बात सबको समझ में आई? तो अब हम गिट यस सर। स्टेटस देखेंगे। गिट स्टेटस से हमको पता चला कि hello.html जो फाइल है वो अभी नई नई बनी है, ठीक है। हमने स्टेजिंग एरिया, नॉन स्टेजिंग एरिया के बारे में पहले बात की थी एक बार। तो ये फाइल अभी अनट्रैक्ड फाइल है अनस्टेजिंग एरिया में। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करते हैं? या तो गिट ऐड डॉट कर लो, या तो फाइल का नाम लिख लो, राइट। और ये फाइल का नाम लिखते ही जब हम, अच्छा फिर से मैंने sudo नहीं किया, मैं एक काम करता हूँ अब आपको बता ही देता हूँ कमांड एक। मुझे थोड़ा इससे बैक जाना पड़ेगा क्योंकि मैं बार बार sudo लिखना नहीं चाहता हूँ। ls-l यूज करेंगे तो आपको सारी सारी जगह फाइल रखी हुई है इनका पता चल जाता है कि आप इस पे रीड राइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं एग्जीक्यूट। ओके, रूट की परमिशंस तो दिख रही इन पे सब पे।
लेकिन अगर इन फाइल्स के अंदर जाएं हम, लर्न वेब डेव, इसमें चेक करना, सॉरी, रीड राइट, अब इन फाइल्स पे प्रॉब्लम है कि इन पे एग्जीक्यूट का तो नहीं है, राइट का भी नहीं है यहाँ पे। एक काम करते हैं, कौन सी वाली कमांड फेल हो रही थी हमारे ऊपर? ये वाली कमांड, ठीक है। एक chmod कमांड आती है, chmod से आप, अगर आप चाहें इसके बारे में पढ़ना तो आपको लिखना है chmod और आपको पता चल जाएगा ये क्या करता है। तो एक कुछ फाइल की परमिशंस होती हैं, वो चेंज करते हैं हम इसके थ्रू। तो chmod लिखते हैं पहले, फिर मोड लिखते हैं और फिर फाइल का नाम लिखते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करूंगा मैं अभी, लेकिन chmod sudo, और मैं यहाँ पे फाइल 777 का मतलब है कि मैं सारी परमिशन देना चाहता हूँ इस फाइल को, जो जो कर सकते हैं इस पे, और hello.html। अब मैं ट्राई करता हूँ वही चीज जो ऊपर देख रहा था, गिट स्टेटस किया मैंने, ये तो आ गया, गिट ऐड करेंगे और फाइल का नाम देंगे। अच्छा, अभी भी नहीं हो पा रहा है, ओके। ये बोल रहा है कि ऑफ लैम्प htdocs डैशबोर्ड लर्न वेब डेव डॉट गिट इंडेक्स लॉग, ओके। जो इसमें गिट वाली फाइल है वो लॉग्ड है एक्चुअली, तो फिर से अब हमें AL चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे गिट वाली फाइल ली है, रीड राइट एक्स, तो जो हमने भी ऊपर hello.html के लिए किया था काम, वो डॉट गिट के लिए करके देखते हैं एक बार। अब ट्राई करते हैं फिर से, इनसफिशिएंट परमिशंस, ओके, अभी भी नहीं आ रहा है। सर तो ये ठीक, लॉक खुद है कि करा है आपने? नहीं मैंने नहीं किया, लॉक ये खुद से लॉक है। तो कोई नहीं, एक काम sudo कमांड यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल उसको यूज करते रहते हैं, क्योंकि रूट के पास परमिशन है, किसी और यूजर के पास नहीं है। ठीक है, तो ये अभी ऐड हो गया है फिलहाल। ls चेक करके हमने देखा, सॉरी ls से 2 फाइल हमारे पास आ गई हैं। अभी स्टेटस चेक करके देखते हैं। तो ये कह रहा है कि ऑन ब्रांच मेन योर ब्रांच इज अप टू डेट विद ओरिजिन मेन, चेंजेस टू बी कमिटेड, ये वाले हैं। तो ये वाली फाइल अभी हमें कमिट करनी है। ये हमने वैसे पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन मैं अभी कंप्लीशन के लिए आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि ओवरऑल क्या हुआ। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? इतने तक में किसी को डाउट है कोई कि क्या हो रहा है? किसी को कोई दिमाग ना चल रहा हो कि यार ये क्या कर दिया यहाँ पे? कोई भी? नो सर। एक लड़की लास्ट क्लास में थी, कौन बोल रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है? सर मैं थी, ज्योति। अच्छा ज्योति, अभी समझ में आ रही हैं चीजें? यस सर। आ रही हैं, ठीक है। तो हम ये क्या, हम जो ये हमने पूरा ऑपरेशन किया, वैसे हम ये पहले कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी समझने में, तो उनके लिए फिर से दोबारा किया जा रहा है कि ये चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पे ये मैंने बनाई थी डायरेक्टरी, इसमें सिर्फ रीडमी वाली फाइल है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ये वाली जो फाइल मैंने बनाई hello.html वाली फाइल, ये मैं यहाँ भेजना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे अब यहाँ से कमांड रन करनी पड़ेंगी। जो अभी आपका मिनी प्रोजेक्ट आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली उसमें ये होगा कि आपको गिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप अगर पहले से सीख जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर बाद में आपको ट्राई करना पड़ेगा, सीखोगे कहीं इधर उधर से। तो बेटर है कि अभी जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझो, इतनी डिटेल में कोई बाद में फिर समझाएगा नहीं आपको ये सब चीजें। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे ये फाइल देख ली जो ग्रीन कलर की दिख रही है, अभी स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है। तीन तरीके की एरिया होते हैं समझ लीजिए, एक होता है स्टेजिंग एरिया, एक होता है नॉन स्टेजिंग एरिया, और एक होता है कमिटेड जहाँ पे चला गया। तो ऐसे समझ लीजिए कि आप परफॉर्म करने जा रहे हैं स्टेज पे, आपको गाना गाना है। तो आप जब स्टेज पे नहीं चढ़े ऊपर, तो आप नीचे हैं कहीं बैठे हुए, तो वो अनस्टेजिंग एरिया है या नॉन स्टेजिंग एरिया, जहाँ पे अभी फाइल आपकी ऊपर हमने देखा था रेड कलर की आ रही थी। तो इस कमांड से गिट ऐड जब हमने किया, यहाँ पे गिट ऐड hello.html, तो इससे हमने फाइल को स्टेजिंग एरिया में पहुंचाया, मतलब नीचे स्टेज के नीचे जब बैठा हुआ था कोई, उसको उठाया और ऊपर लेके गए कि अब आपकी नेक्स्ट परफॉर्मेंस से लाइन में खड़े हो जाओ। जब गिट कमिट करेंगे तो हम उसको बोलने चलो अब तुम्हारा नंबर आ गया, सॉन्ग स्टार्ट करो। तो गिट कमिट कैसे करते हैं, गिट कमिट लिखा -m लिखा, उसके बाद मैसेज पास कर देते हैं कोई, तो हेलो फर्स्ट HTML प्रोग्राम, मैं ये मैसेज पास कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ।
ये बार बार दिक्कत करेगा अब। अच्छा, ये कह रहा है कि कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपको कि आप कौन है, आपको भी ऐसे बोलेगा ये। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से, ये इसने जो बोला एग्जैक्टली यहाँ पे यही कॉपी कर देता हूँ, सूडो लिखता रहता हूँ बार बार। एक और तरीका है, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे आप बच सकते हैं इस चीज से। deepak.unial08@gmail.com। ये बोलो, कुछ बोल रहे सर हैं आप? बोलो। सर ये गेट के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? गेट कमिट। गिट कमिट यहाँ पे ये वाला? सर ये जो आपने जब आप कमिट करे ना कोड को, तो आपने कमांड लिख रखा है गेट कमिट। यस सर, इसी के बाद -m लिखा हुआ है मैंने। -m का मतलब होता है कि मैं क्या मैसेज पास करना चाहता हूँ। मैसेज में ये पास करना चाहता हूँ फर्स्ट HTML प्रोग्राम, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। तो लेकिन गिट को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ। वो कह रहा है कि प्लीज टेल मी हु यू आर, राइट। तो मैं यहाँ से इस चीज को उठा रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे बताया कि ऐसे सेटअप कर सकते हैं आप अपना सिस्टम। तो मैं दे रहा हूँ sudo git config global यूजर नेम, सॉरी ईमेल। तो यूजर की ईमेल आईडी देनी है यहाँ पे, जैसे आपने जिस आईडी से यहाँ पे सेटअप किया होगा। जैसे देखो मैंने ये जो सेटअप किया है वो इस ईमेल आईडी से किया हुआ है जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखू, ऐसे करूंगा, हो गया सेट। अब मुझे नेम सेटअप करना है, तो नेम में वो सेटअप करूंगा जो मैं चाहता हूँ कि वहां पे दिखाई दे। तो वो है दीपक उनियाल, ये नाम मैं चाहता हूँ कि वहां पे आए। ये मैंने सेटअप कर लिया, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही है? अब मैं कमिट करने की कोशिश करता हूँ, फिर से एंटर किया। अच्छा ठीक है, मैंने फिर से सूडो छोड़ दिया। अब मैं आपको बताता हूँ सूडो बार बार जो लिखना पड़ रहा है वो ना लिखना पड़े, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। ऐसे लिखो SU, पासवर्ड डालो, और SU लिखने के बाद, अच्छा ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, सूडो सू होता है आई थिंक, ठीक है। अब एक यहाँ पे आपके पास ये रूट ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे। अब आपको कभी ये नहीं डालना पड़ेगा कि पासवर्ड क्या है, सूडो सू लिखना है। ये कमांड ध्यान रहेगी आप लोगों को? ठीक है, सूडो सू कमांड है, इसको डालेंगे तो उसके बाद कभी आपको बस ऐसा, ये आपका बन चुका है। यहाँ पे एक हैश का निशान दिखेगा, उससे आपको पता चल जाएगा। इससे पहले क्या था, देखो ये $साइन था, ये नॉर्मल यूजर था। जब यहाँ पे देखा आपने रूट आ गया, अब रूट सारे काम कर रहा है। तो मैं करता हूँ git commit -m, या मैं ऐसे एरो के निशान से जो पहले, अच्छा इसमें नहीं आ रहा है, git commit -m, और मैंने क्या लिखा था, फर्स्ट HTML प्रोग्राम। तो इसने, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट HTML प्रोग्राम 1 फाइल चेंज एंड 15 इंसर्शन, ये हो चुका है। अब मुझे क्या इस फाइल को यहाँ पहुंचाना है। क्या इतने से हो गया होगा, पहुंच गई होगी फाइल यहाँ पे? अगर मैं रिफ्रेश करूं तो फाइल आई, देखो जरा। नो सर, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पुश पुश करना पड़ेगा, ठीक है। मैं git log एक कमांड का यूज करके देख सकता हूँ कि कितने कमिट हुए हैं। तो ये देखिए, एक तो ये कमिट है पहला वाला, जब मैंने फाइल बनाई थी वहां पे इनिशियल कमिट, वो अपने आप रख दिया गया उसका नाम। और दूसरा ये कमिट है जो मैंने अभी अभी किया, और ये अभी अभी जो कमिट किया इसकी आईडी ये है। तो गिट लॉग से आप प्रीवियस जितने कमिट हुए हैं उनको देख सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अगर दो कमिट के बीच डिफरेंस देखना चाहते हैं कि कितना डिफरेंस आया है, तो ऐसा कर सकते हैं, इस कमिट की आईडी को उठाओ, यहाँ पे छापो, फिर स्पेस दे दो, फिर दूसरे कमिट की आईडी को उठाओ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, एंटर करो। तो आपको पता चल रहा है कि ये वाला कोड एक्चुअली हम उल्टा देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये हमको ये दिखा रहा है कि यहाँ पे कोड डिलीट हुआ है, डिलीट की तरीके से दिखा रहा है। यार ये बात आ रही समझ में? हमें उल्टा देखना है, तो उल्टा कैसे देखेंगे, गिट लॉग एक आईडी ले लीजिए, गिट डिफ। तो पहला कमिट तो ये था, इसके बाद अगला कमिट ये था, इसको कॉपी करो, इसको पेस्ट करो। अब दिखा रहा है कि इस कमिट से इस कमिट में जाते हुए हमने इतना कोड ऐड किया आपकी फाइल में। ये डिफ कमांड बताती है आपको। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। गुड। तो अब हम पुश कर देंगे, हमको पता चल गया कि ये कोड हमने चेंज किया है, गिट पुश ओरिजिन, और हम लिखेंगे मेन। मेन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन लिखा हुआ है, देखो ये मेन एक ब्रांच है अभी जिस पे हम काम कर रहे हैं।
आप ये ब्रांच चेंज भी कर सकते हैं और नई ब्रांच भी बना सकते हैं, ये पेड़ की तरह समझ लीजिए। पर अभी हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रांच है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिट पुश ओरिजिन, इतना तो लिखना ही है, और साथ में लिखा मेन जो कि ब्रांच का नाम है। एंटर करेंगे, हमसे बोल रहा है कि यूजर नेम बताओ, तो मैंने अपना यूजर नेम डाल दिया, ये मेरा यूजर नेम है। अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पे तो यहाँ ऊपर दिख रहा है ये वाला मेरा यूजर नेम है, आपका भी ऐसे ही होगा। तो एंटर करूंगा, अब मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं अपना पासवर्ड डाल दूंगा जो मैंने पासवर्ड डाला होगा यहाँ पे, और ये करते ही जो भी कोड मैंने लिखा वो सारा का सारा चला जाएगा सर्वर पे। तो इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, और यहाँ पे कोड आगे देखो hello.html वाला। ये बात सबको समझ में आई? कोई डाउट इतने में? नो सर। ठीक है, सबको क्लियर है ये बात? कुछ बच्चे सर गायब गिट हो गए डिफ वैसे। सर बोलो। सर गिट डिफ और -r हेड भी तो यही काम करता है जो अभी आपने किया था। अच्छा एक सेकंड, एक और पूछ रहा है, सूडो सू कब काम आती है? जब आपको पासवर्ड नहीं डालना बार बार और सूडो नहीं लिखना, तब सूडो सू लिख दो और पासवर्ड एक बार डाल दो, वो आपको ऐसे लेके चला जाएगा, जैसे यहाँ पे लेके गया मुझे, ये रूट में आ गया ऑलरेडी मैं, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा मुझे बार बार। ठीक है, अब पूछो आप क्या पूछ रहे थे कुणाल? सर एक कमांड थी git diff -r head, वो भी तो यही करता है ना कि क्या माइनस डिफरेंस आर है दो मैं पिछली फाइल और अब की फाइल में। गिट डिफ माइनस आर हेड, तो यस ये तो सर। हेड से डिफरेंस निकालेगा जहाँ पे भी हेड है। एक्चुअली देख लेते हैं, ज्यादा कमांड अपनी मर्जी से मत रन करना, पहले देख लेना कि क्या काम करती है। यस git सर। diff head will show all changes to tracked files, will have changes stage for the commit, then both command will output the same. Okay, origin reference source of repository, चेक करके देखते हैं एक बार। git diff head से हमारा तो अभी शायद से कुछ आएगा नहीं, क्योंकि अभी कुछ चेंजेस नहीं है। अगर मैं कुछ नई फाइल बना दूं यहाँ पे और उसको रख दूं स्टेजिंग एरिया में, तब वो चेंजेस बताएगा। ठीक है, ये दो चीजें हैं, देखो एक बार देख लेते हैं इसको। किसी ने क्वेश्चन पूछा भी है आपके डिफरेंस, एक सॉरी, ये आप ट्राई भी कर सकते हैं। ये कमांड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि इसको ये आप ट्राई कर लेना। ये मैं आपके एक असाइनमेंट सेकंड वाला जो बनाऊंगा उसमें डालता रहता हूँ ये चीजें। ठीक है, गेट डिफ हेड एंड गेट डिफ हाइफन हाइफन स्टेज। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। सपोज दिस आउटपुट फॉर गेट स्टेटस, okay, there is one file modified but not stage for commit, and new file added that is already to be committed. Stage only show changes to the files in the stage area, will show all the changes to be tracked files. Okay, if you have all changes stage for the commit, then both command will output the same. तो अभी देखो, जैसे हमने यहाँ पे एक फाइल, अभी हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है, ठीक है, जिसमें हम कुछ चेंज करना चाहते हैं। बल्कि ऐसा कर लेते हैं कि एक छोटा सा कुछ बनाते हैं, पहले कुछ चेंज करके देखते हैं। ये वाली फाइल थी ना हमारी, ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से। कुछ चेंज हो गया यहाँ पे देखिए। ओके, ये चेंज नहीं कर पा रहा है अब। ये प्रॉब्लम है इसके साथ, कैसे किया जाएगा ये काम? एक सेकंड, थोड़ा मैं परमिशन सेट कर लेता हूँ यहाँ पे।
परमिशंस सारी हैं अब हमारे पास, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं अगर परमिशंस अलाउ करेगा हमें तो। ठीक है, अब अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अब हम जो भी चेंजेस होंगे वो यहाँ पे कर पाएंगे। मैं फिर से फाइल ओपन करके देख लेता हूँ। ठीक है, अब हम चेंजेस कर पा रहे हैं। ये सबको समझ में आया क्या किया हमने यहाँ पे? मैं आपको एक कमांड भेज देता हूँ एक्चुअली इसी में। अगर आपको फाइल को कुछ परमिशंस देनी होती है, ये जो 777 है इसका मतलब सारी परमिशंस दे दी हमने, जितनी भी हो सकती हैं, रीड राइट एक्स, और सबको दे दी। वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए, लेकिन अभी हम इजी तरीका हमारे पास यही है कि ये कर लेते हैं। ठीक है, रीड राइट एक्स सब चीजें हमने दे दी हैं इसको। तो कोई भी करना चाहे इस पे कोई भी चेंज कर सकता है फाइल पे। ये सिक्योर तरीका नहीं, मैं आपको पहले बता दूं, बट अभी के लिए हमारे पास यही तरीका है, इसको कर दे रहे हैं हम। तो ये देखिए मैंने यहाँ से 2 लाइन रिमूव की है, और ये 2 लाइन रिमूव करने के बाद मैं गिट स्टेटस चेक करता हूँ फिर से। तो हमने क्या किया, ये फाइल हमारे पास है, राइट, और ये मॉडिफाई हुई है थोड़ा सा। अब हम देखते हैं वो 2 पार्ट जिनकी हम बात कर रहे थे। 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो है गिट डिफ हेड, इसको देख लीजिए क्या चेंज आता है इससे। तो ये क्या दिखा रहा है हमें कि हमने 2 लाइन हटा दी है। और दूसरी कमांड कौन सी थी? गिट डिफ स्टेज, इसको देखते हैं एक बार। अब बताइए इससे कुछ समझ में आया आपको? इन दोनों कमांड रन करने से कोई समझ में आया कोई बात? सर हेड तो डिफरेंस बता रही है, पर स्टेज्ड क्या कर रही है? हाँ, स्टेज, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी इससे पहले कि एक स्टेजिंग एरिया होता है, एक नॉन स्टेजिंग एरिया हाँ होता है। यस सर। ठीक है, तो अभी सबको समझ में आ गया इस कमांड ने क्या किया, पहले किया क्या, ये समझ में आ गई बात? डिफरेंस समझ में आ जाएगा अभी, पर ये बता दो ये अभी समझ में आया हुआ क्या है? यस सर। गिट डिफ हेड ने क्या किया, देखो ऐसा होता है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे आप ऐसे मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपका हेड है। हेड मतलब एक पॉइंटर होता है एक जगह पे कहीं पे, और आपने थोड़ा बहुत चेंज किया और आपकी फाइल यहाँ पे आ गई, ये प्लेस एक्स पे, राइट। तो जब मैं ऐसा कर रहा हूँ गिट डिफ और हेड लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में क्या चेंजेस आया, चाहे ये फाइल हमारी स्टेजिंग एरिया में हो या नॉन स्टेजिंग एरिया में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बात सबको समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। ठीक है, मैंने अभी अब एग्जांपल बताया था ना आपको, जैसे मान लीजिए स्टेज है ये, और यहाँ पे ये नॉन स्टेज है। तो अगर कोई यहाँ पे खड़ा है, कोई बंदा ऐसे ये परफॉर्म करना चाहता है अभी, तो होगा क्या, इसको यहाँ से और यहाँ स्टेज तक ले जाने के लिए एक कमांड का यूज करेंगे, गिट ऐड और फाइल का नाम, राइट। तो तब ये स्टेजिंग एरिया में पहुंचेगा। अभी अगर ये देखो ये वाली फाइल को हमने जो भी इसमें चेंज किया, तो इस फाइल को चेंज करने के बाद हमने कोई कमांड यूज की क्या, गिट ऐड वाली? कुछ भी यूज नहीं किया हमने। नो सर। जब हम यूज करेंगे गिट ऐड और फाइल का नाम क्या है, hello.html, तो तब ये फाइल वहां जाएगी स्टेजिंग एरिया में। अब इस केस में क्या होगा, गिट डिफ हेड का और गिट डिफ स्टेज का सेम ही आउटपुट आएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि सेम आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो स्टेज यस सर। अगर स्टेटस चेक करेंगे तो आपको दिखेगा ये फाइल ग्रीन हो गई, इसका मतलब स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है अब। तो गिट डिफ हेड ये बोल रहा है कि आपने ये चेंज किया, जो कि हमें पता है ये सही कह रहा है। अगला स्टेज, ये भी वही बोल रहा है। अब सेम आ गए। आई बात समझ में? सर मतलब गिट डिफ हेड एक ही लाइन में वो कर दे रहा है जो गिट ऐड और गिट डिफ स्टेज्ड कर रहा था। हाँ, यही समझ लीजिए अभी यस कि सर। यही कर रहा है। तो स्टेजिंग एरिया में आपको ये पहला क्वेश्चन आपका हो भी गया, बल्कि असाइनमेंट के लिए आप खुद भी करेंगे ट्राई। लेकिन मैं इससे पहले आपको असाइनमेंट दूं, पूछ भी लेता हूँ। 2 बच्चे गायब हो गए यहाँ से, कोई कौन कौन गायब हुए ये बच्चे? कोई नहीं, अभी रिकॉर्डिंग देखूंगा बाद में।
पंकज सिंह आप बताओ, आपको समझ में आया इन दोनों का क्या मतलब हुआ, गिट डिफ हेड का और गिट डिफ हाइफन हाइफन स्टेज का? नो सर। अरे तो क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के? कुछ तो बताओ। सर वो स्टेजिंग एरिया वाला जो आपने बताया होगा, उस वक्त मेरा मतलब वो चल नहीं रहा था, तो मैंने 2 बार लॉगिन किया, उसके बाद सेटिंग्स करके अब ऑडियो आ रही है आपकी। ओके चलो मैं किसी और से पूछता हूँ फिर, तुम तो आज के लिए तुम्हारा हो गया मतलब काफी। आयुष, आयुष बताओ। यस सर। क्वेश्चन सुना तुमने कि नहीं सुना? यस सर। तो आंसर बताओ। देखो गलत बता दोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो हम सीख रहे हैं ना। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को ये सभी चीजें नहीं आती हैं, बट ये कि जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा बहुत आपको ये समझ लीजिए कि जैसे मैंने जितना भी समझाया तो उसका 10% या 15% कुछ तो बताओगे। ये यस आंसर सर। मैं नहीं सुनना चाहता आप लोगों से कि सर ये नहीं आता। हाँ सर, सर आपने बताया कि जब तक मतलब फाइल अगर स्टेजिंग एरिया पे नहीं होती है तो जो गेट डिफ वाली कमांड है वो बता देगी जो हमने चेंजेस किए हैं फाइल में, पर स्टेज वाली नहीं बताएगी। स्टेज वाली नहीं बताई। जब तक वो स्टेजिंग एरिया पे नहीं जाएगी फाइल। हमने दो कमांड यूज की ना, हमने गिट डिफ हेड वाली और गिट डिफ हाइफन हाइफन स्टेज वाली। यस सर। तो गिट डिफ हेड स्टेजिंग पे मतलब ये समझा दो इन दोनों में, जैसे गिट डिफ हेड कब और गिट डिफ हाइफन हाइफन स्टेज कब सेम देंगे आउटपुट, किस सर केस ये में सेम देंगे? सेम तब देंगी सर जब हम फाइल को स्टेजिंग एरिया में मूव कर देंगे, मतलब जब गेट ऐड कर देंगे। गुड। उससे पहले ये डिफरेंट आउटपुट देंगे, राइट? यस सर। ठीक है, अभिमन्यु कुमार आप बताओगे उससे पहले डिफरेंट आउटपुट क्यों दे रहे हैं? अभिमन्यु? सर नहीं पता सर। तो ये जवाब नहीं सुनना चाहता, कुछ और बोलो। ये तो कुछ एक अच्छा सा जवाब ढूंढ के लाओ। समझ ही नहीं आ रहा सर ये। समझ ही नहीं आ रहा है? यस सर। पिछली वीडियो देखी दो? सर खुल ही नहीं रहा सर वो, इस पे मोबाइल पे दिख नहीं रहा सर, और पीसी में खुल नहीं रहा सर। ऐसा कैसे हो गया भाई? तुम्हारे पास VLC मीडिया प्लेयर है? अभी खोल के दिखाऊं तुम्हें? सर ये मोबाइल पे चलाता हूँ सर, ये मोबाइल पे खुलता ही नहीं। तो किसने कहा तुम्हें मोबाइल पे चलाओ यार, ये बताओ ना। सर पीसी पे डाउनलोड करके रखा है सर, उससे लॉगिन नहीं हो पा रहा। नहीं ये देखो ना, ये देखो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी कैसे खुलती हैं फाइल्स। ऐसे कैसे दिख रहा है आपको? ये पिछली बार की वीडियो है। तो ऐसे कैसे होगा यार? ऐसे ये तो कोई बहाना नहीं चलेगा ना कि आपकी वीडियो ओपन नहीं हो रही है। ये तो किसी के लिए बहाना नहीं चलेगा। यस यस प्लीज, कौन पूछ रहा है कुछ? सर मतलब गिव डिफ स्टेज जो है वो हेड और स्टेज के बीच का डिफरेंस बताता है। गिट डिफ, देखो जो डिफरेंस आता है वो हेड का और जो फाइल्स अभी आपके पास हैं जो आपने अभी चेंजेस किए हैं उनके बीच का डिफरेंस आता है, पहली बात तो। अच्छा ठीक है। और सर हेड क्या बताता है? हेड गिट डिफ हेड क्या बताता है? हेड और वर्किंग डायरेक्टरी के बीच का डिफरेंस। देखो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने कमिट कर दिया था चेंज, तो यहाँ पे थे हम अभी, ठीक है? यस सर। ठीक है, यहाँ पे थे अभी। अब उसके बाद आपने एक फाइल में कुछ चेंज किया, जैसे मैंने इस फाइल में चेंज किया, बताया ना आपको भी कि 2 लाइन हटा दी यहाँ से। यस सर। तो लेकिन लाइन हटाने के बाद उसको ट्रैक करने के लिए उसको गिट ऐड करना पड़ता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे किया गिट ऐड hello.html, इससे ये फाइल स्टेजिंग एरिया में जाती है। यस सर। तो जब फाइल स्टेजिंग एरिया में जाती है तो ये गिट डिफ हाइफन हाइफन स्टेज तभी पता कर पाएगा कि क्या चेंज हुआ। जब तक स्टेज में नहीं है उसको नहीं पता कि चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा समझ लो कि कुछ बच्चे स्टेज पे बैठे हुए हैं, कुछ नीचे हैं। एक कमांड है जो बोलती है कि अभी कितने बच्चों की परफॉर्मेंस बाकी है। वो देखता है स्टेज में, उसको दिखते हैं 4 बच्चों को, लगता है 4 बच्चों की स्टेज परफॉर्मेंस बाकी है। वो ये कमांड है जो ये बोलती है कि स्टेज में देख के बताती है। लेकिन हेड वाली कमांड को पूरा पता होता है कि जो नीचे बच्चे बैठे उसका भी काउंट उसके पास होता है।
चाहे वो स्टेज ओके पे नहीं चढ़े तब भी। ये डिफरेंस है इन दोनों कमांड में। ओके सर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो जो लिंक आपके पास अभी मैंने जैसे पहली सर्च की थी तो मुझे ये दिखा लिंक, ये मैं आपको भेज देता हूँ, आप इसको थोड़ा ढंग से समझ के चीजें पढ़ लेना। और बच्चों जिसको ये बात बोलेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है और उसने अगर पहले की वीडियो लेक्चर नहीं सुने तो उसमें फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मैं क्लास स्टार्ट होती है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप बताइए पिछली बार का कुछ समझ में आया कि नहीं आया, उस पर क्वेश्चन रेज करना आपका फर्ज बनता है और जवाब देना मेरा। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे कि प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे, आप कहेंगे कि सिर्फ मैं तो सर मोबाइल में देखता हूँ, तो आपको किसी ने बोला है कि आप मोबाइल में देखो? सर हाँ बोलो। सर मतलब जो हेड वाले में है, अगर हम उसमें मतलब हमने कोई चेंजेस किए और ऐड नहीं किया तो वो हेड में दिख सकता है? वो हेड में और दिख जाएगा, स्टेज में नहीं दिखेगा वो। अगर हमने कोई चेंजेस किए हैं और ऐड नहीं किया है तो वो स्टेज में नहीं दिखेगा? बिल्कुल, अच्छा सर, समझ गया सर। यही तो हुआ था ऊपर देखो। अभी जब हमने ऐड नहीं किया था, ये रेड कलर का दिख रहा था, तो गिट डिफ ऐड किया तो हमको दिख गया यहाँ पे कि चेंज हुआ। लेकिन गिट डिफ स्टेज किया तो नहीं दिखा, उसने बोला कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो तो स्टेज से ही देख पाता है ना। हाँ सर, समझ गया। आगे बात समझ में? हाँ सर, आ गया अब। ठीक है, गुड। तो बच्चों सारे बच्चे ये देखो, जितने कम भी हो रहे हैं ना, ये जितने बच्चे कम होते जा रहे हैं, ये 20 थे, 16 हो गए, और जो बाकी हैं इन सबको आप अपनी लैंग्वेज में समझा दीजिएगा या अपने सीनियर से पूछ लेना। इस चीज को मैं बहुत स्ट्रिक्टली लेता हूँ कि आप क्लास में आपका बिहेवियर क्या है, किस तरीके से आप क्लास अटेंड करते हैं और असाइनमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको मार्क्स जब आएंगे फाइनली तब एहसास होगा कि कुछ गड़बड़ हुई है, तब आपके पास सुधारने का मौका नहीं मिलेगा इन गलतियों को। तो मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ डिटेल में, अगर आप चाहें तो आप ये भी बोल सकते हो सर हमें ये नहीं सीखना है, ये हम खुद ही सीख लेंगे, तो आप अपना डिसाइड करके मुझे बता देना, मैं इस पे फिर बात ही नहीं करूंगा कुछ। हम सिंपली विंडोज में बहुत बढ़िया तरीके से, और बहुत जल्दी सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, मुझे भी पेन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं तो बता दीजिएगा मुझे, नहीं सीखना चाहते तो कोई जबरदस्ती नहीं है। पर आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो तो आपको क्लास अटेंड करके समझना पड़ेगा, जो डाउट है वो पूछने पड़ेंगे तभी सीख पाओगे। अभी मिनी प्रोजेक्ट में आपको बोला जाएगा गिटहब पे सबमिट करो कोड, तो फिर आपको सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा किसी हाल में, चाहे आप आज सीखो या कल सीखो या परसों सीखो। सर अगर सर गेट डिफरेंट स्टेज में अगर चेंजेस होते हैं तो हेड में शो होता है सर? बच्चे देखो, सबसे पहले हेड को ही पता चलता है। तो सर फिर हम हेड से ही तो काम मतलब कर सकते हैं, हमें स्टेज की फिर जरूरत है? बच्चे अलग अलग कमांड्स हैं एक्चुअली ना, अब आपने जब उनको ऐड कर दिया तब आप देखना चाहते हैं कितना चेंज हुआ है। कई बार जरूरत पड़ती है इन कमांड्स की, डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स हैं वो। हेड में तो आपको पता चल जाएगा जो पूरे चेंजेज आपने किए, और स्टेज में आपको वो पता चलेगा जो आपने उनको स्टेज में डाल दिया, जिनको आप कमिट करने वाले हैं। कमिट सिर्फ वही होता है जो स्टेज में होता है, मतलब परफॉर्मेंस सिर्फ वही दे सकता है जो स्टेज के ऊपर है, जो स्टेज के नीचे बैठा है वो नहीं दे सकता। ओके सर। ठीक है, तो अभी देख लीजिए हमने जो भी काम किया, बस इतना सब कुछ अभी पढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा इसलिए मैंने बता दिया आपको। तो अब देखिए फिर से ये चेंजेस आए हैं, ठीक है, स्टेज पे। अब हम क्या करेंगे, गिट ऐड हम कर चुके हैं, अब हमको क्या करना है, गिट कमिट करना है फिर से। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिमूव 2 लाइन्स, रिमूव 2 लाइन्स लिख रहा हूँ बस। ठीक है, यही कमिट किया मैंने, या अननेसेसरी लाइन्स, कोई जरूरत नहीं थी इनकी, मैंने ऐसे ही कर दिया। अब मैं फिर से गिट पुश करूंगा ओरिजिन मास्टर, ये कुछ फेल हो गया, गिट पुश ओरिजिन, सॉरी मास्टर लिखा है मैंने इसलिए फेल हुआ है, मुझे मेन लिखना है, ये मैं भूल गया था, क्योंकि पहले इसका नाम मास्टर हुआ करता था, अब से मेन ब्रांच का नाम, मतलब ये समझ लीजिए कि 2-4 महीने पुरानी बात है, जब से इसका नाम मेन होना स्टार्ट हो गया, पहले मास्टर हुआ करता था। तो मुझे फिर से अपना यूजर नेम डालना है और अपना पासवर्ड डालना है, और ये चेंजेस वहां फिर से चले जाएंगे। अगर मैं गिटहब को देखूं वापस, ये देखिए यहाँ पे गिटहब कहाँ है हमारा, ये वाला, इसको रिफ्रेश करूं और डायरेक्टरी पे जाऊं तो यहाँ पे 3 कमिट आ गए। देखिए 3 कमिट पे क्लिक करूंगा अगर, तो ये 1 मिनट पहले हुआ है, और इसमें मुझे दिख जाएगा कि मैंने 2 लाइन हटाई है। दिख रही है आप लोगों को? यस यस सर। सर। 2 लाइन हटी हुई दिख रही है, ठीक है।
तो ये वाली फाइल थी जिससे 2 लाइन हटी हैं और हम यहाँ पे ट्रैक भी कर पा रहे हैं आसानी से। तो ये तो गिटहब के साथ हो गया थोड़ा बहुत कि ऐसे ऐसे गिटहब पे काम करते हैं। ये बात सबको समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ हम क्या करेंगे, कुछ एक नई फाइल क्रिएट करते हैं जिसमें हम काम करेंगे। अब ये यहाँ पे एक ही फाइल है hello.html। हम बात करते हैं टेबल की, बात करते हैं आज टेबल सीखते हैं बनाना। और ये टेबल बनाने के लिए आप, ये फाइल लॉक्ड दिख रही है, मैं देखता हूँ पहले सेव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अच्छा पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है, लेकिन सेव कर पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जब हम कुछ भी कोड लिखते हैं तो हम HTML स्टार्ट करते हैं टैग को और उसको क्लोज करते हैं। जो भी स्टार्ट करते हैं उसको क्लोज करते हैं हम, ये जरूरी है। टेबल डेमो, ये बात सबको समझ में आ रही है बच्चों कि हम क्या कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, अब हम बॉडी लिखेंगे यहाँ पे। तो आज की क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आज बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। जो बच्चे भाग गए अब उनको क्या कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, जब हम टेबल की बात कर रहे हैं तो टेबल का काम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। एक हमारे पास टैग होता है टेबल नाम का, सबसे पहले ये टैग हमको यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि इंडेंट कर देंगे इसको ताकि आसान रहे हमारे लिए लिखना। एक बार पासवर्ड मांग रहा है मेरे से, तो मैं इस पासवर्ड से बचने के लिए एक और काम कर सकता हूँ। ls-l चेक करके देख लेता हूँ, इस पे परमिशंस नहीं है तो मैं 777 कर देता हूँ सब पे, ताकि मुझे बार बार ये सब कुछ ना डालना पड़े। तो ये देखिए मैंने चेंज कर दिया इसको, तो ये सब कुछ बार बार शायद से अब नहीं डालना पड़ेगा मुझे, अब नहीं डालना पड़ रहा है। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ। तो अब हमें टेबल बनानी है। टेबल में 2 चीजें हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसकी थ्योरी बता देता हूँ। जब भी हमारी टेबल बनती है तो टेबल कुछ ऐसी बनती है, ऐसा मान के चलिए कि ऐसा कुछ बनेगा। इसमें कुछ कॉलम्स होते हैं ऐसे और कुछ रोज होती हैं इस तरीके से। तो टेबल में क्या क्या डेटा आ सकता है, जैसे मैंने बोला स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट का कॉन्टेक्ट नंबर, स्टूडेंट की ईमेल, जैसे आईडी 1 2 3, और नाम आप लोगों के किसी का, मैंने उठा लिया कुणाल, उठा लिया मैंने ज्योति, एंड थर्ड में उठा लेता हूँ रिया। एज भी आपकी कुछ सिमिलर डाल दी, ये डाल दिया, ये डाल दिया। तो इस तरीके से टेबल बनती है। तो ये बेसिकली जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला, इसको हेड बोलते हैं यहाँ पे। जो ये नीचे वाला पार्ट होता है इसको बॉडी बोलते हैं। जो ये एक एक चीजें हैं इसको सेल बोलते हैं। ठीक है, ये एक आपको ऐसे में दिख रहा है जो, इसको हम बोलते हैं कॉलम। और जो आपको दिख रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टली, इसको बोलते हैं रो। अब बताओ ये बात सबको समझ में आई? यस सर। कोई Yes, डाउट? sir. ये क्लियर है? ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब देखो ये जो पूरा टेबल जब बनता है तो इसके लिए एक टैग इस्तेमाल होता है टेबल नाम का। ठीक है, जब एक रो बनती है उसके लिए एक टैग इस्तेमाल होता है टीआर नाम का। जब एक सेल बनता है जिसके अंदर एक छोटा सा डेटा आपको दिख रहा है, कोई भी एक डेटा, इसके लिए बनता है टीडी नाम का टैग, टीडी। ठीक है, तो सबसे पहले एक पूरी टेबल बनेगी ऐसे और उसको बंद करेंगे। तो इसका मतलब ये चीज आपको इतना बना के दे रही है पूरा का पूरा। उसके अंदर आप जितनी बार टीआर ऐड करेंगे उतनी रोज बनती जाएंगी। ठीक है, और 2 चीजें और भी होती है वैसे, एक टी हेड होता है, एक टी बॉडी होता है, ये दोनों भी टैग हैं। तो टी हेड हम इसको, जो ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको बनाने के लिए यूज करते हैं। किसको बनाने के लिए? ये वाला जो पार्ट है। और टी बॉडी किसको बनाने के लिए यूज करते हैं? जो ये वाला पार्ट है।
तो आसान होता है, ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें। हम इसमें आते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टी हेड बनाते हैं और टी हेड हमको बंद भी करना पड़ता है। उसके बाद हम टी बॉडी बनाते हैं, उसको बंद भी करना पड़ता है। कोई दिक्कत इसमें इतने में? नो सर। नो सर। ऐसे ठीक है, ऐसी टी बॉडी यहाँ बनेगी। अब जो मैंने आपको कहा कि टी आर और टी डी बनाते हैं, तो सबसे पहले जब यहाँ ऊपर टी आर लिखेंगे तो ये एक रो बना देगा मेरे लिए। ऐसे बंद कर देंगे इसको और इसको मैं एंटर मार देता हूँ। अब मैं जो लिखूंगा इसके अंदर लिखूंगा। हेड में क्या होता है, जब टी हेड लिखते हैं मतलब ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, इसमें मैं टी डी नहीं लिखूंगा, इसमें एक अलग चीज लिख सकते हैं हम टी डी की जगह। वो होगी टी एच। ये समझ में आ रहा है सबको क्या क्या हो रहा है? यस सर। गुड। तो यहाँ पे टी एच लिखते हैं और टी एच बंद कर देते हैं। ऐसे ही हमारे पास मान लीजिए 4 डेटा पॉइंट हैं, तो 4 बार टी एच कॉपी कर देते हैं। देखो कितना आसान काम है। यहाँ पे हमारे पास 3-4 चीजें थी, आईडी, नेम, एज, कॉन्टेक्ट और ईमेल। 5 है लेकिन हम 4 का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईडी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है बच्चों? और मैं यस यहाँ सर। पे जाता हूँ और इस सर फाइल पे टी डबल एच कॉलम के लिए है। टी एच एक सेल के लिए है। जैसे टी डी यूज होता है ना, वैसे ही टी एच भी यूज होता है। ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसके लिए, अगर इसके लिए देखना है तो टी एच यूज करूंगा मैं, इनके लिए टी एच। ठीक है, और अगर ये वाले बनाने हैं आपको तो टी डी का इस्तेमाल करेंगे आप। ऊपर वालों के लिए भी टी डी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ओके। लेकिन कई बार जरूरत ऐसी पड़ती है कि हमको अलग कुछ इस्तेमाल करना पड़ता है। तो पहले तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ लेफ्ट में रख देता हूँ और यहाँ राइट में कर देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे जो मैं करता रहूँ। सिमिलरली फिर से मैं एक टी आर बनाता हूँ, क्योंकि मैं जितनी रो क्रिएट करना चाहता हूँ उसके लिए मैं यहाँ पे बनाऊंगा। अब ये टी आर, ठीक है, ये अब एक रो बनेगी यहाँ पे डेटा की। और मैं इसको लिखता हूँ, सॉरी, टी डी, और टी डी को क्लोज कर देते हैं। तो ऐसे ही, क्योंकि ऊपर 4 कॉलम है तो नीचे भी तो 4 होने चाहिए। सॉरी, हाँ ठीक है, ऊपर 4 कॉलम है तो उन चारों के नीचे 4 डेटा पॉइंट होने चाहिए ना। तो जैसे मैंने आईडी लिखी 1 2 3 पहले स्टूडेंट की, उसका नाम मैंने लिखा कुणाल, और सेकंड मैंने लिखा मान लीजिए 18 19 कुछ एज लिख ली, और उसके बाद कांटेक्ट है 9988776655। इसको सेव किया, राइट में रिफ्रेश किया, ये बन गई टेबल। अभी आपको बॉर्डर नहीं दिख रहा है, बॉर्डर भी दिखा देंगे आपको। एक और रो बनानी, तो मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मुझे लगता है। 4 5 6 किसी दूसरे स्टूडेंट को उठा लेते हैं, ज्योति को, और यहाँ डाल देते हैं। देखिए बन गई टेबल। इसमें कोई डाउट किसी को अभी तक? सर हाँ बोलो। सर ये जो टी हेड और टी बॉडी टैग आपने यूज किया है, उसको अगर हम ना यूज करके सिर्फ टी एच टैग भी यूज करते हैं तो भी तो हेडिंग बोल्ड मतलब हो जाती है, और बाकी सब टी डी करके और रोज फिल कर सकते हैं। आप ये कह रहे हो कि इसका आप कह रहे हो कि टी हेड अगर यूज ना करें तो? टी हेड और टी बॉडी यूज ना करें तो? हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली तो क्या होता है ना, अलग से क्या पर्पस? अलग से पर्पज है एक्चुअली। आपको HTML और CSS का जो पर्पज है ना, आपको जब HTML कोड करेंगे तब ज्यादा समझ में नहीं आएगा, जब जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे तब समझ में आएगा। अच्छा सर। क्योंकि जावास्क्रिप्ट हम क्यों यूज करते हैं? किसी पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। तो हमें इनकी जो है ये टैग्स होती हैं, कई बार इनकी जरूरत पड़ती है। जैसे कि तो अब जब जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा ना, अभी देखो धीरे धीरे। ठीक है, अगर अभी बता दूंगा तो फिर वहीं फंस जाएंगे हम सारे। ओके सर। तो फिर से एक बार फिर से उठाते हैं, एक और स्टूडेंट को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 4 5 6 की जगह 5 6 7 कर देते हैं, और ज्योति की जगह रिया कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए 3
3 डेटा पॉइंट हमारे पास आ गए हैं, 3 रोज आ गई है, पर इसमें अभी हमारे पास अब आपको दिख रहा है कि इसमें कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई बॉर्डर नहीं है। टेबल में तो जनरली बॉर्डर होना चाहिए ना, टेबल इन HTML अगर आप लिखेंगे तो आपको एग्जांपल्स जितने भी मिलेंगे, जैसे आपने W3 स्कूल्स ओपन किया तो आपको यहाँ दिखेगा कि ये देखो, ये तो ये खाली बना हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे स्टाइल में कुछ ऐड कर सकते हैं। स्टाइल अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, बट ऐसी कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। बॉर्डर दिखा लेते हैं पहले, हाँ जैसे ये है, ये बॉर्डर आ रहा है, दिख रहा है आपको? यस सर। आप सबको ये बॉर्डर दिख रहा है, राइट? तो इस टाइप के बॉर्डर्स हम ऐड कर सकते हैं इसमें। बॉर्डर ऐड कैसे करेंगे वो हम अभी देखेंगे। इसने जिस तरीके से किया उस तरीके से भी करके देखेंगे, और कुछ और भी तरीके हो सकते हैं जिनसे हम बॉर्डर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको बंद करते हैं, यहाँ पे वापस आते हैं। तो टेबल में सबसे पहला तरीका तो क्या है कि आप यहाँ पे बॉर्डर लिख सकते हैं, और आपको लिखना है मे बी 1 पिक्सल का बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं आप, तो आपने लिखा 1 पिक्सल। पिक्सल आपको पता होता है सबको क्या होता है पिक्सल? पिक्सल जानते हैं क्या होता है? सर फोटो का वो रेजोल्यूशन के लिए होता है कुछ। एक्चुअली फोटो का ही रिजोल्यूशन नहीं होता है, वो आपकी स्क्रीन का रिजोल्यूशन होता है। यस सर। फोटो तो हम ऐसे बोलते हैं इतने पिक्सल की है, तो एक्चुअली हम उसको ही देख रहे हैं कि कितने डेटा पॉइंट्स हैं उसमें। यस तो सर। इमेज ऐसे देखिए, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। जैसे इमेज आपकी होती है ना, तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी पिक्चर की। बिल्कुल 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 स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जैसे इमेज भी जो आपकी होती है ऐसे मैट्रिक्स तरीके से कुछ डिवाइड होती है। तो ये एक स्मॉल पॉइंट है ये वाला, इसको हम एक पिक्सल बोलते हैं इस वाले को। तो जैसे इसमें 1 2 3 4 5, 5 एक साइड और दूसरा 1 2 3 4 5 6 7, 5/7 की इमेज है ये, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, यस तो सर। हम उसकी बात कर रहे हैं। एक एक डॉट जो हम इसकी विड्थ देना चाहते हैं, सॉरी ये बॉर्डर देना चाहते हैं इसकी चारों तरफ, वो 1 पिक्सल का देना चाहते हैं। तो आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे ये आया अभी, तो 1 पिक्सल का बॉर्डर आ गया। ये डबल क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, उसकी अभी तुम बात छोड़ो फिलहाल, बट आपको दिखेगा कि 1 पिक्सल का ये बॉर्डर बन चुका है। ये देखो ऐसे इस तरीके से। ये बात आ रही है सबको समझ में? यस सर। ठीक है, और भी चीजें हैं, देखो और भी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। अब आपको समझ में आया कि मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट साथ में क्यों पढ़ाता हूँ। तो इसमें आप स्टाइल ऐड कर सकते हैं, स्टाइल नाम की चीज एक। ठीक है, और स्टाइल में आप जैसे कोई कलर देना चाहें या कोई टेक्स्ट चेंज करना चाहें, जैसे मैं कलर देना चाहता हूँ और मैंने कोई जी RGB में पूछ रहा है मेरे से, मैं ब्लू लिख लेता हूँ, मे बी शायद से काम आएगा। ये हो गया सारा ब्लू, दिख रहे हैं आप? तो ये पूरा एक्सेप्ट दिस थिंग जो स्टाइल में दिया है, ये सारा HTML है एक्सेप्ट दिस थिंग जो स्टाइल में दिया है। और जो स्टाइल में दिया है इसको बोलते हैं CSS। तो HTML जो हमारा होता है, आई विल ऐड अ न्यू पेज हियर। जब हम HTML की बात करते हैं तो एक्चुअली हम पेज के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं सिर्फ, कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। आपने इससे पहले देखा यहाँ पे कि जब हमने टेबल ये ऐड नहीं किया था, स्टाइल ऐड नहीं किया था, ये वाला अगर मैं हटा दूं यहाँ से, तो सिर्फ ऐसा पेज का स्ट्रक्चर था ये सिर्फ। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने स्टाइल ऐड कर दिया, अब मैं इसको ब्यूटीफाई भी कर सकता हूँ, अलग अलग चीजें दे सकता हूँ। जैसे अभी ब्लू दिया मैंने, तो तुम्हारी मर्जी है रेड दे दो या कुछ और दे दो, वो दे सकते हो आप। तो ये कौन हेल्प कर रहा है आपकी इसमें? ये CSS हेल्प कर रहा है आपकी। CSS हेल्प करता है आपकी ब्यूटीफाई करने में, जो भी आपका पेज है। तो इससे आप स्ट्रक्चर दे रहे हैं, इससे आप ब्यूटीफाई कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट की हम बेसिकली जब बात करेंगे तो हम इंटरेक्टिविटी की बात करेंगे कि इंटरेक्टिविटी कैसे होगी। इंटरेक्टिविटी क्या हो सकता है, मतलब जैसे एक बटन है, मैंने बोला यहाँ पे क्लिक करो, उसके बाद कुछ हो जाए, कोई इवेंट हो जाए कुछ, तो वो जावास्क्रिप्ट का काम है फिर आगे। इतना समझ में आ रहा है? यस सर सर। आप जावास्क्रिप्ट भी कराओगे क्या? कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे यार, ऐसे कैसे बात कर दी आपने? जावास्क्रिप्ट नहीं कराएंगे फिर क्या करवाएंगे हम कोर्स में, हैं?
ओके सर। ठीक है, तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि HTML CSS तो बहुत जल्दी सीखनी है। आप बल्कि एक और काम कर सकते हो, W3 स्कूल पे जाओ खट से और अपना बैठो सैटरडे संडे में एक दिन लर्न HTML पे जाओ, एक तरफ से देखना स्टार्ट करो इनको। ठीक है, जितने भी टॉपिक हैं ये, यहाँ से होम से लेके और कहीं यहाँ तक में भी। ठीक है, और ये आपका 1 आध घंटे का काम है, निपटा दो, खत्म करो इसको। ऐसे CSS पे जाओ, थोड़ा बहुत यहाँ से उठाओ कुछ टॉपिक्स, जैसे मतलब ऊपर ऊपर के, ठीक है, 10-12, और इसको खत्म कर दो। जो मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ चलते रहोगे। जैसे मैंने पढ़ाया, ये आज टेबल्स पढ़ा दिया आपको, ये CSS का थोड़ा थोड़ा पढ़ाया, तो इसके बाद आपको समझ में आने लग जाएगा कि W3 स्कूल में जो लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है। कई चीजें ऐसी हो सकती हैं कि वो आपको समझ में ना आए, तो इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट वहां से और यहाँ से लिंक करता रहे और ये बहुत जल्दी आप कवर कर पाए। तो उसके बाद हमारे लिए आसान रहेगा कि हम इसको पिक कर पाए, जावास्क्रिप्ट को और PHP को। ठीक है, और आपका मेन जो आप यहाँ क्लास अटेंड करने बैठे हो, आपका सबसे पहला काम ये है कि आपको जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं तुरंत तुरंत पूछते रहना है, डिले नहीं करना है पूछने में। ठीक है, क्वेश्चन स्टूपिड भी हो सकता है और इंटेलिजेंट भी हो सकता है। राइट, अब तक सबको समझ में आया जो बताया गया? कोई डाउट किसी को अब तक? कोई डाउट तो नहीं है ज्योति, आपको कोई डाउट तो नहीं है? ये सर ये आपने जो कलर ऐड किया है इसमें, तो सर ये CSS का पार्ट है? हाँ, ये CSS का पार्ट है। तो सर ये HTML में कैसे है? HTML में इंक्लूड कर सकते हैं उसको, CSS को इंक्लूड करने के 2-3 तरीके होते हैं। ठीक है, तो फाइल किस नाम से, मतलब? फाइल तो HTML के नाम से बनेगी। ठीक है, जैसे CSS हम इंक्लूड करना चाहते हैं या जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूड करना चाहते हैं, दोनों के तरीके हैं। एक तो इनलाइन होती है, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। तो ये इनलाइन है, जो ये चीज दिख रही है आपको इनलाइन, इनलाइन का मतलब होता है कि आपने जिस टैग की बात हो रही है उसी पे ऐड कर दिया, दैट इज इनलाइन। ओके सर। ठीक है, उसके अलावा 2 चीजें और होती हैं। जो लास्ट वाली चीज होती है वो होती है एक्सटर्नल। ये तो इनलाइन दिख रही है आपको कि आपने यहाँ पे ऐड किया। एक होगा जिसमें एक्सटर्नल के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट अ न्यू फाइल। और जब ये नई फाइल क्रिएट करेंगे आप, तो उसका नाम कुछ ऐसा होगा जैसे hello.css या hello.js जावास्क्रिप्ट। ये एक्सटर्नल फाइल है। तीसरी चीज होती है इंटरनल। इंटरनल में क्या करना पड़ेगा, यूज टैग्स एंड पुट द कोड इनसाइड दैट। मतलब इसका मतलब ये है कि जहाँ हेड के अंदर जाओ, अगर आपको यहाँ डालनी है तो आप लिखो यहाँ पे स्टाइल, अपना आप आगे देखो, और यहाँ डाल दो वो चीजें। जैसे मैं इसको डालूंगा उठा के अभी यहाँ से कलर रेड वाले को, देखो किसी को कोई डाउट होगा, मैं फास्ट चल रहा हूँ, ये मुझे पता है मैं फास्ट चल रहा हूँ, लेकिन जल्दी से कनेक्ट कर पाओगे अगर चीजें तो मुझे बताना, अगर दिक्कत हो रही होगी तो मुझे फिर भी बता देना। ठीक है, ये बात समझ में आ रही क्या हुआ यहाँ पे अभी? यस और नो? ये आ रही समझ में ना? ठीक है, तो अब होता क्या है कि मैं ये देखो हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ये हटा दिया मैंने। अब अगर इस फाइल को उठा के देखोगे आप फिर से, तो ये फिर से ब्लैक हो जाएगी, मुझे रेड करनी है इसको। तो ये जो पहला वाला तरीका था दैट वाज इनलाइन, इनलाइन CSS। ऐसी इनलाइन जावास्क्रिप्ट भी होती है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन ऐसी जावास्क्रिप्ट भी होती है। जो एक्सटर्नल होता है उसमें एक नई फाइल बनानी पड़ती है और उस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है। हम अभी उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम छोटे प्रोग्राम बनाएंगे तो हम इंटरनल CSS का यूज करेंगे। राइट, तो इंटरनल CSS में क्या करना है, कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप टैग के नाम से काम कर सकते हैं। जैसे टैग है टेबल, मैंने ऐसे लिखा, अब अगर मैं यहाँ पे कोई स्टाइल यूज करता हूँ तो वो पूरी टेबल पे लग जाएगी। तो मुझे यहाँ पे ये स्टाइल लिखना नहीं है, बस सिर्फ कलर और रेड ऐसे लिखना है, ऐसे। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं तो आ गया कलर रेड। अब बताओ कैसा लगा, कैसा लगा आपको रेड कलर? सर इसमें जो भी चेंजेस होंगे वो पूरी टेबल में चेंज हो जाएगा? बिल्कुल,
अभी देखो ट्राई करके देखते हैं दोबारा से। अभी रेड था, अब मैं ब्लू करके देखता हूँ। लो हो गया चेंज। सर ये टेबल टैग कैसे, मतलब इसमें तो टैग लगा ही नहीं है सर, आपने कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं। हाँ तो जब स्टाइल के अंदर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि टेबल नाम का जो टैग है उसके कलर को ब्लू कर दो, ये बोलना चाह रहे हैं हम। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जो आप अभी बता रही थी ना इससे पहले, एक बच्ची कौन कह रही थी, वो रिया कह रही थी कि अगर हेड का क्या इस्तेमाल है, इसका क्या इस्तेमाल है। अब देखो यहाँ पे, अब आएगा मजा। ठीक है, अब मैं इसका कलर कुछ और करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हेडिंग का कलर है वो कुछ और हो और जो बॉडी का कलर है वो कुछ और हो। अब बताओ कैसा लगा आपको सर ये जान के? बोलो। सर वो तो हम इंडिविजुअल टैग्स में भी कर सकते हैं ना। तो क्यों करना है ये इंडिविजुअल टैग में? हाँ सर। ये बताओ, जब मैं एक बॉडी को पूरे एक साथ कर दे रहा हूँ, है ना, तो नहीं मैं सर, क्यों जैसे अलग? आप अलग अलग रोज को कर रहे हो, वो कलर चेंज अभी उनका। अभी अलग अलग कहाँ कर रहा हूँ? मैंने तो यहाँ से किया डायरेक्ट टी बॉडी से। हाँ सर। अगर मान लीजिए टी हेड और टी बॉडी नहीं होता, फिर मैं कैसे करता, ये बताओ। सर अगर टी बॉडी और टी हेड नहीं होता तो फिर आपको हर मतलब कि टी आर मतलब टी एच का कलर अलग से देते हम, टी एच कलर इक्वल्स टू, और बाकियों में सब में डालना पड़ता, तो वो थोड़ा लेवल वाला काम हो जाता। वैसे देखो पता क्या है, एक प्रॉब्लम के ना मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि टी हेड या टी बॉडी लगाना है। वो तो जब आप कोड करते हैं तो आपको कोई चीज आसान लगती है कि इस तरीके से कर सकते हैं, तो आप वो करने लगते हैं। बस सिंपल सी बात ये है। यार इसमें कोई गलत और सही नहीं है। आप चाहो तो ये टी बॉडी और टी हेड टैग को यहाँ से हटा दो, ये हटा दो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। लो हटा देता हूँ मैं आपकी खुशी के लिए, बच्चों की खुशी सबसे पहले है। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब मैं इसको कुछ और कर देता हूँ। मे बी मैं ऐसा कुछ करता हूँ, इसको टी एच कर देता हूँ, ट्राई करते हैं टी एच करके, और इसको टी डी ट्राई करते हैं जो आप बोल रही हैं। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके चेक करता हूँ। देखो अभी भी वही है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। लेकिन हो सकता है आपको कहीं और जरूरत पड़े कुछ करने की। हम एक्चुअली हेडिंग को और उसको इस तरीके से सेपरेट करना चाह रहे हैं। टी बॉडी और टी हेड में हो सकता है कुछ और अटैच करना पड़े कभी। वो जब जावा स्क्रिप्ट की बात आएगी तब आप और चीजें क्लियर होंगी। सर सर एक और डाउट था। हाँ बोलो। सर ये जो आपने टाइप्स बताया ना, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल वाले, तो कौन सा वाला बेटर रहता है? बेटर अलग से देखो इनलाइन तो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इनलाइन में क्या है, जैसे मैंने बोला कि मुझे इसको हटाते हैं पहले। ठीक है, इसको हटा देते हैं मान लीजिए। अब मैं यहाँ पे जो ये हेडिंग्स टी एच है पूरा का पूरा, इसको ब्लू करना चाहता हूँ। तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट स्टाइल और कलर और ब्लू, ऐसा करूंगा। देखो यहाँ पे ये आ गया ब्लू। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बाकी की नीचे की रोज हैं, ये स्टाइल, कलर और रेड, सारे रेड होने चाहिए। हाँ सर, मैं यही कह रही थी कि सब में डाल अब देंगे। सब में करना पड़ेगा तो इनलाइन में ये हाँ करना सर। पड़ता है, दिक्कत है ना। हाँ तो इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं। मतलब करने के लिए तो कर भी सकते हैं, लेकिन वो अच्छा तरीका नहीं है। सर। कुछ गलत और सही नहीं है, बस एफिशिएंट की बात है कि कितना एफिशिएंट कोई तरीका है करने का। ये बात आई कौन समझ सा में सबको? सबसे एफिशिएंट है, एक्सटर्नल की इंटरनल? एक्सटर्नल में क्या है, एक्सटर्नल में और अच्छी बात यह है कि आप एक नई, बिल्कुल नई फाइल बना रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कई बार स्ट्रक्चर कोई और रेडी कर रहा है आपकी कंपनी में और सीएसएस पे स्पेसिफिकली कोई और काम कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। कंपनीज के पर्सपेक्टिव से सोचो तो वो क्या करेंगे, सीएसएस की फाइल को बिल्कुल अलग रखेंगे और जो एचटीएमएल की फाइल होगी उसको बिल्कुल अलग रखेंगे। सीएसएस वाला सिर्फ ये डिसाइड करेगा कि अगर टेबल बनेगी तो किस तरीके की दिखेगी, और स्ट्रक्चर वाला सिर्फ स्ट्रक्चर बनाएगा। वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो डेव फ्रंट एंड वाले लोग होते हैं वो अगर सीएसएस कर रहे हैं तो एचटीएमएल भी मोस्ट प्रोबब्ली वही करेगा। लेकिन जैसे जावा स्क्रिप्ट है वो अलग हो सकती है, वो कोई अलग बंदा कर सकता है। तो उस केस में मोस्टली हम इसे एक्सटर्नल फाइल ही बनाते हैं, क्योंकि उसमें कोड ज्यादा लिखना पड़ सकता है। तो हम उसको इसके अंदर लिखेंगे तो इतनी बड़ी फाइल में तो सिर्फ जावा स्क्रिप्ट आ जाएगी।
तो हम कोशिश करते हैं कि एक अलग फाइल जावास्क्रिप्ट की बनाएं और उसको इसके अंदर लिंक करें। आ रही बात समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन ऐड कर देते हैं आपका यहाँ पे। व्हाट आर, देखो क्वेश्चन भी साथ साथ में लिखते जा रहा हूँ मैं आपके। डिफरेंट वेज टू इंक्लूड CSS एंड जावा स्क्रिप्ट इन HTML फाइल। 2 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। सर बोलो। सर ये अगर हमने इंटरनल में ही बॉर्डर यूज कर लिया तो कुछ फर्क पड़ेगा कोड पे? इंटरनल में ही कोड, इंटरनल में ही यूज कर लिया अगर टाइट टैग के अंदर हमने बॉर्डर, अगर टेबल का बॉर्डर डिफाइन कर दिया वहां पे कितने पिक्सल्स का है। कहाँ? यहाँ पे, यहाँ पे तो कर रखा है हमने ना। स्टाइल टैग के अंदर। अच्छा, आप कह रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे स्टाइल लिखूं, ऐसे बोल रहे हो? नहीं सर, ये जो आपने हेड के अंदर जो स्टाइल टैग बना रखा है, इसके अंदर टी हेड और टी बॉडी इंटरनल CSS जहाँ पे लगा रखी है। ओके ओके ओके, आप यहाँ पे चाह रहे हो कि मैं यहाँ पे टेबल लिखूं और यहाँ पे लिख दूं बॉर्डर 1 पिक्सल, ऐसे? यस सर। तो लो, कर लो रिफ्रेश। ये क्या करेंगे इसको, बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर, टेबल का बॉर्डर, या अच्छा ठीक है, इसमें हमको टेबल TR सब देने पड़ेंगे। TR देख लो एक बार। ओके, क्योंकि इसमें प्रायोरिटी का भी चक्कर होता है कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, जो इनलाइन होता है ना CSS, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो आई थिंक वो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं हम। इंस्पेक्ट से हमको पता चल जाएंगी कई चीजें। इंस्पेक्ट करना पहले बताया था मैंने आपको। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, एक बार देखते हैं कि इसमें बॉर्डर क्यों नहीं आ रहा है, ये देखना हमारा काम है। TD डिस्प्ले सेल वर्टिकल अलाइन इनहेरिट, बॉर्डर कॉलेप्स। क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये डिफॉल्ट हैं इसके अंदर। तो अगर हमने कुछ भी ऊपर डाला है तो ये चीजें उसको ओवरराइट कर दे रही हैं। फॉन्ट साइज, कलर, इंटरनल टेक्स्ट अलाइन, बॉर्डर स्पेसिंग, फॉन्ट वेरिएंट। बॉर्डर एक काम करते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ऐसा कुछ करते हैं। आइए ना, ऊपर एक्चुअली कलर नहीं दिया था हमने, तो कलर से नहीं आ पा रहा था। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई कलर रहा होगा सेट, इसलिए यहाँ पे हमको 1 पिक्सल से डायरेक्ट दिख जा रहा है, बट यहाँ पे हमको सॉलिड ब्लैक लिखा तो आ गया। ठीक है, ओके सर, ठीक है। अब हमको यहाँ पे लेकिन जैसे TD भी देना पड़ेगा, TH भी देना पड़ेगा, और तब ये पूरे पे आ जाएगा। ऐसे देखो। ओके ओके सर, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये बॉर्डर आपको दिख रहा है। एक चीज, इस बॉर्डर में कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको? बॉर्डर्स में प्रॉब्लम लग रही है कुछ आप लोगों को? कौन बताएगा मुझे? डबल लाइन आ रही है, मतलब डबल बीच में स्पेसिंग हो रखी है। स्पेसिंग हो रखी है ना। लो, फिर तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाउ टू रिमूव डबल लाइंस इन टेबल फ्रॉम टेबल। लो, और पहला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन, क्रिएट अ टेबल containing student details like, जैसे क्या क्या हो सकती हैं, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, इसको अलग अलग कर देते हैं। स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट कॉन्टेक्ट, स्टूडेंट ईमेल। ये 4-5 चीजों की टेबल आपको बनानी है मिला के। ठीक है, 5 क्वेश्चन ऐड करेंगे थोड़ी देर में भी। तो इतना समझ में आया क्या क्या हुआ?
सर। और ये लाइन हटानी है आपको, हटा देंगे आप? यस सर। तो आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा कि कैसे कैसे हटती है और कैसे कैसे लाइन बनती है। बस बताओ, और कोई डाउट इसमें? बस टेबल का बेसिकली इतना ही काम है फिलहाल अभी तो, जितनी आपको चीजें सीखनी है। आपको जो भी चीजें ऐड करनी है, जैसे आप कुछ एक्सपेरिमेंट अगर करना चाहो तो यहाँ कर सकते हैं आप सारे। जैसे टी हेड में आपको फॉन्ट स्टाइल देना है, तो फॉन्ट स्टाइल क्या दे सकते हो आप? जैसे हम रेगुलर या एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाना चाहिए वैसे, फॉन्ट स्टाइल भी रोमन नहीं, फॉन्ट स्टाइल, एक सेकेंड, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, फॉन्ट फैमिली देना चाहता हूँ मैं। तो जैसे मैं देना चाहता हूँ एरियल या मोनो स्पेस। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए मोनो स्पेस हो गया ये, ठीक है। आप अगर फॉन्ट का साइज या वेट बदलना चाह रहे हैं तो वेट का बोल्ड या बोल्डर इस तरीके से कर सकते हैं। ये बोल्ड आया, बोल्डर में देखते हैं कुछ चेंज होता है कि नहीं होता है, कुछ लग तो नहीं रहा है अभी फिलहाल, ठीक है कोई नहीं। इसको नॉर्मल ट्राई करके देखें। वैसे हमने TH दिया है उसको, तो ऑलरेडी उसने बोल्ड कर दिया होगा उसके लिए, तो इसलिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। फॉन्ट साइज चेंज करके देखते हैं, अभी इसको 20 करके देखते हैं, 20 पिक्सल, देखते हैं छोटा होता है कि नहीं होता है। 200 करके देखते हैं। तो ऐसे हिट एंड ट्रायल करते रहिएगा। Ctrl 0 कर लेता हूँ पहले तो इसको। टी हेड पे किया है ना हमने, फॉन्ट साइज 200 पिक्सल, अब हो गया देखिए। ये पिक्सल अलग लिखने से नहीं हो रहा है, हाँ ये पास लिखना पड़ेगा थोड़ा। तो 20 पिक्सल में देखिए, 20 पिक्सल में ये हुआ हेडिंग। तो आपने सब यही चेंज किया। अगर आप नीचे वाला जो ये टेबल है इसको भी चेंज करना चाहते हैं, मे बी फॉन्ट चेंज करना चाहें, या और क्या क्या चेंज कर सकते हैं फॉन्ट के अलावा, जैसे अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं आप। तो उसके लिए आपको टेक्स्ट अलाइन लिखना पड़ेगा। जैसे मैं टेक्स्ट अलाइन लिखना चाहता हूँ और मैं लेफ्ट में अलाइन करना चाहता हूँ, तो अभी तो पता नहीं चल रहा है, वैसे वैसे है भी लेफ्ट में। ये टेक्स्ट अलाइन राइट कर देते हैं एक बार, तो अब जो टेक्स्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये राइट में चला जाएगा। दिखा चेंज होता हुआ? यस सर। दिखा ना, बस ऐसे ही। और सेंटर लिखेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, ये भी दिखा चेंज होता हुआ। यस सर। बस ऐसे ही खेलते रहना इसके साथ। सर हाँ बोलो। सर पैडिंग से क्या होता है? तो अभी सीख लोगे सारा ठीक है, अगर नहीं सीखना सर, आप चाहते हो बता ठीक देते है। तो मुझे तो क्या है, मैं तो जल्दी खत्म कर दूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है। तुम पूछोगे तो जल्दी जल्दी निपटता जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, यही चाहते हो, ठीक है गुड। ऐसे बच्चे चाहिए मुझे जो ऐसे चाहें। यहाँ देखो कुछ दिख रहा है इसमें? यस सर, दिख रहा है। ये मार्जिन है, ये बॉर्डर है, ये पैडिंग है। अब पैडिंग क्या होता है, जैसे एक और टैग में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके लिए। ये टैग आपको समझाने के लिए डिव टैग है, ये बहुत इस्तेमाल होता है जगह जगह, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेलो एवरीवन। यस सर, सुना है इस टैग के बारे में। इस टैग के बारे में सुना, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। या ऐसा करते हैं, हेलो एवरीवन को छोड़ देते हैं बेचारे को, और ये जो डिव है ना इसको यहाँ से उठा के और टेबल के बाद रखते हैं। तो ऐसा कुछ करेंगे। और हम अगर जाएं यहाँ पे, ये देखो डिव टैग है ये हमारा। ये डिव टैग दिख रहा है ना आपको, ऊपर हाईलाइटेड दिख रहा है पूरा ब्लू कलर का, ठीक है, वो डिव टैग है। अगर मैं इसको हटाऊं और टेबल पे पहुंचूं तो ये टेबल वाला टैग दिख रहा है, जो ये ब्लू लेफ्ट साइड में दिख रहा है। यहाँ से आप पता चलता रहेगा, देखो ये टी हेड दिख रहा है, ये टी बॉडी दिख रहा है। तो देखो कितना आपके लिए क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल आपको ढंग से करना है। अब आ जाओ लेफ्ट साइड में। अब आपने पूछा कि क्या क्या होता है ये, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसे डिव के लिए एक CSS बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए मैं डिव के लिए क्यों बना रहा हूँ, ताकि आसान रहे काम। मैं पैडिंग बनाता हूँ यहाँ पे पहले, और पैडिंग 20 पिक्सल करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ थोड़ा सा। कुछ मुझे ये बताओ क्या दिखा तुम्हें चेंज होता हुआ?
सर थोड़ा स्पेस आ गया। थोड़ा स्पेस आया ना? यस सर। ठीक है, लो थोड़ा सा इसको 50 कर देते हैं अभी, अब और आसानी से दिख जाएगा आपको। इसको हटाते हैं यहाँ से, दिखा? यस सर। यस सर। इसको बॉर्डर बना देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू कलर का। ये आपके लिए और आसान हो जाएगा समझना क्या हुआ। अब बताओ, इसको हटाता हूँ पहले, रुको, तब समझोगे आप। अभी देखो क्या दिख रहा है। यस सर। यस सर, अब आ गया समझ में। अब देखो क्या दिख रहा है। ठीक है, अभी रुको, अभी नहीं हुआ क्लियर, रुको अभी क्लियर होगा। अब बताओ, अभी कुछ हुआ? अब बताओ Yes, चेंज। सर। आप समझाओ, कौन समझाए? कंचन समझाओ। सर इसमें ये होता है, मतलब पैडिंग से हम स्पेस बता सकते हैं हमें कितना रखना है। मतलब और मार्जिन से? अब मार्जिन तो से, मार्जिन से मार्जिन से सर कि मतलब कि हमें टेक्स्ट कितना चाहिए मार्जिन से आसपास, मतलब ज्यादा चाहिए तो कम पिक्सल देंगे हम, मिडिल में चाहिए तो। लो फिर से देखो इसको, फिर से देखो इसको। अब ये पैडिंग होती है, ये मार्जिन होती है। ये देखो ऊपर दिख रहा है हाइलाइटेड। यस सर दिख रहा है। रुको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, इससे मन को शांति मिलती है, ताकि समझ में आ जाए। अब बताओ, ये देखो, ये मार्जिन है, ये पैडिंग है, ये मार्जिन है, ये पैडिंग है। किसको समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी से बताओ। सर मार्जिन में बाहर की बॉर्डर तरफ के बाहर स्पेस वाली मतलब और वो है मार्जिन। पैडिंग में अंदर की तरफ स्पेस। हाँ ठीक है। अब देखो, जो मैंने एक डिप बनाई थी, ये डिप जो अभी ग्रीन कलर की दिख रही है, पूरी की पूरी डिप है वो, ठीक है, जिसके अंदर टेबल भरी हुई है पूरी की पूरी, वो क्या है? डिव है। अब जब मैंने बोला कि इसमें पैडिंग होनी चाहिए 50 पिक्सल की, तो पैडिंग के केस में वो क्या करेगा? ये जो टेबल दिख रही है आपको, ये अपने से और डिव के बीच में 50 पिक्सल का स्पेस ले लेगी, क्योंकि हर राइट साइड से ले नहीं सकती 50 पिक्सल का। उसने लेफ्ट से भी ले लिया, ऊपर से भी ले लिया, और नीचे से भी 50 पिक्सल का स्पेस ले लिया। ठीक है, ये वाली चीज समझे बात को? कोई बोलो, कुछ गायब तो नहीं होते सारे? यस सर। बोला करो। देखो आप, स्क्रीन शेयर हो रही, तुम्हें दिख रहा होगा ना कि मेरे को बार बार यहाँ क्लिक करना पड़ रहा है तुम्हें देखने के लिए। सर क्या बोला आपने कि डिव के और उसके बीच में रहता है वो, क्या एक बार दोबारा बोल दो। देखो ये डिव दिख रही है ना ब्लू कलर के ऊपर, ब्लू यस कलर की सर। लाइन ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी आपको चारों तरफ से। हाँ दिख रही है। यस सर। उसके अंदर जितना भी सेक्शन है वो पूरा डिव का सेक्शन है, डिवीजन बोलते हैं उसको। ओके ठीक है, सर। अब मैंने डिव के अंदर एक टेबल बनाई, और मैंने डिव में बोला कि पैडिंग चाहिए मुझे 50 पिक्सल की। तो पैडिंग का मतलब ये है कि डिव से और इस टेबल के बीच में जो ये स्पेस आएगा, 50 पिक्सल का स्पेस होगा। ये देखो, ये टेबल है, ये पैडिंग है, और ये कितनी है? चारों तरफ से देखो 50 दिखा रहा है वो, दिख रही है आपको ये यहाँ पे? यस सर दिख रहा है। यस सर दिख रही है। तो पैडिंग का मतलब अंदर से बात कर रहे हैं हम। जैसे मैं इसको बोलूं कि डिव से मुझे 50 की पैडिंग चाहिए, तो अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा, अभी तो टेबल बनाई मैंने, अगर टेक्स्ट भी लिखता, तो ये टेक्स्ट का क्या करता है? टेक्स्ट से और इस डिव की बाउंड्री में 50 पिक्सल का गैप दे देता। सर अगर हम डिव नहीं बनाते तब कैसे पता चलता? अगर डिव नहीं बनाते तो जनरली हम डिव बनाते हैं इन चीजों के लिए। अगर आप कुछ और बनाएंगे तो फिर वो किसी और से देगा वो चीजें। आप ये सर तो बिना डिव के भी तो पैडिंग हो सकती है। हो सकती है, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी, शांत करते हैं, चिंता मत करो। तो बता दो ना सर। इसमें डिफ का मतलब फायदा क्यों? हम तो सीधा मार्जिन से, मतलब जैसे 50 का डिफ से था ना, तो तो बेटा उसकी देखो, जगह सीधा 100 मार्जिन देते। मार्जिन बाहर की तरफ है, पैडिंग अंदर की तरफ है, ये है डिफरेंस। ये देखो नहीं नहीं यहाँ, सर, डिव का क्या हुआ? मतलब हमें डिव की क्यों जरूरत पड़ी? डिव की जरूरत इसलिए पड़ती है, डिव हम जब बहुत सारे सेक्शंस अलग अलग क्रिएट करने पड़ते हैं ना, जब आप वेब पेज बनाते हैं, कि आपको एक लेफ्ट में रखना है, एक राइट में रखना है, एक मान लो बीच में रखना है, एक ऊपर रखना है, एक नीचे रखना है, तो ये जनरली काम जो हम करते हैं आसानी से जब होते हैं वो डिव के थ्रू होते हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है, जैसे आपको चाहिए कि एक टेबल आपने यहाँ पे बना दी और एक यहाँ टेबल यहाँ राइट में भी रखनी है, तो वो काम हम डिव से ही करेंगे, अदरवाइज आप फंस जाओगे चीजों में। ठीक है, और
ऐसा नहीं है कि आपको div की जरूरत है ये मार्जिन और पैडिंग दिखाने के लिए, इसके बिना भी कर सकते हो आप। ओके सर। ठीक है, तो अगर आप सब अभी जानना चाहोगे तो सब आप खुद भी तो करो कुछ, आपको मजा आ रहा होगा ना कि हाँ क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, आंसर मिलते जा रहे हैं, यस तो सर। अच्छा लग रहा होगा ना? नहीं तो खुद भी तो करना है कुछ। यस सर, अगले खुद करेंगे अभी। हाँ, तो ये अब आप ट्राई करेंगे खुद कि अगर आपको टेबल ये ट्राई कर लीजिए, देखे जैसे ये आईडी दिख रही है ना, तो इस पे पैडिंग और मार्जिन लगा के देख लीजिए कि आईडी से और जो ये बाउंड्री दिख रही है इनके बीच में अगर पैडिंग लगाएंगे तो चारों तरफ से कैसे वो इतना गैप बन जाएगा इसी सेल के अंदर। ठीक है, इस तरीके की चीजें ट्राई कीजिएगा। तो ये क्लियर है सबको क्या क्या हुआ आज? यस सर। तो मैं ऐसा करता हूँ, जो ये कोड मैंने लिखा ये मैं गिट स्टेटस ऐसे करता हूँ, गिट ऐड करता हूँ, जो भी बना गिट कमिट करता हूँ, क्रिएट टेबल यूजिंग HTML एंड CSS और गिट पुश ओरिजिन मेन, और यहाँ पे अपना यूजर नेम डालता हूँ और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालता हूँ, और आप देख लीजिए गिट हब पे यहाँ पे आ गया होगा आपके पास पूरा का पूरा कोड, ये आ गया टेबल। अब आपकी मर्जी, इसको रन करो, जो करना है करो, जो बदलाव करने इसमें करो सारा का सारा। ठीक है, यस सर। तो बस ये मैं आपको चैट में भेज देता हूँ यहाँ पे। तो मैं जो यहाँ पे आपको अभी टेबल यहाँ बताई थी, सॉरी टेबल नहीं, ये असाइनमेंट, इसमें 4 क्वेश्चन तो ऐड हो रखे हैं। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, मैं इसमें और भी चीजें ऐड करता रहूंगा धीरे धीरे। अभी तो 4 क्वेश्चन ऐड किए, और भी कुछ कर लूंगा, लेकिन अभी आप फिलहाल के लिए 4 क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को इतने में? नो सर। तो बस हम जल्दी जल्दी अब वाइंड अप करेंगे चीजें, आज तो इतना काफी है मेरे ख्याल से। एक और चीज है छोटी सी, मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लास और आईडी वाली बात होती है कुछ। क्लास और आईडी जानते हैं आप? थोड़ा किसी को आइडिया है कुछ? यस सर। किसको आइडिया, नाम बताओ अपना। सर ऋषभ। ऋषभ, ठीक है। तो एक चीज होती है क्लास और एक होती है आईडी। आईडी यूनिक होती है एक पेज के अंदर, और क्लास मल्टीपल हो सकती हैं। ठीक है, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। इसका क्या मतलब है, जैसे हमने ये बनाया यहाँ पे टेबल और टी हेड टी बॉडी, इन सब पे हमने कुछ ना कुछ चीजें अप्लाई की, और उसके बाद ये कलर वलर कर दिया। ये सारा खेल हमने जो खेला, इसके अलावा हम कुछ और भी चीजें कर सकते हैं। जैसे मैं क्लास बना सकता हूँ एक, या आईडी बना सकता हूँ। तो क्लास जो मैं मल्टीपल कह रहा हूँ, एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये क्लास आप बनाते हैं, क्लास you can apply it to multiple elements। ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट का क्या मतलब है, जैसे एक टीआर यहाँ पे है, एक टीआर यहाँ पे है, कोई दूसरा टैग है, मान लीजिए पी है यहाँ पे। तो एक क्लास मान लीजिए आपने बनाई है और क्लास का नाम है पैरा, तो वो पैरा आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने एक आईडी बनाई पी नाम से, और वो पी वाला आपने अप्लाई कर दिया इस पे, तो अब आप इस पे और इस पे उसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है, कोड के हिसाब से समझते हैं। जैसे मैंने एक बना दिया, सॉरी क्लास ऐसे बनती है, देखो डॉट लगता है पैरा, ये क्लास बनी, और जब आईडी बनती है तो ऐसे बनती है हैश लगा के। तो मैं यहाँ पे पैरा 1 कर देता हूँ, और इसको या ऐसा करते हैं पैरा आईडी लिख देता हूँ। यस नो बोलते रहा करो बीच में, मुझे लग रहा है तुम्हें नींद आ गई सबको। यस सर। यस सर। ओके, तो पैरा क्लास और पैरा मैंने कुछ यहाँ पे किया, और मैं एक काम करता हूँ,
ये div के अंदर ना 2 पैराग्राफ बना देता हूँ छोटे छोटे। तो पहले पैराग्राफ में लिखते हैं all CE students are very punctual, all of them attend classes regularly। ठीक है, और दूसरा वाला कर देते हैं कुछ, दूसरा वाला क्या लिखें यार, all CE students are, क्या कर सकते हैं तुम्हारे बारे में, क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी है तुम्हारी ऐसी? सर वेरी इंटेलिजेंट। आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, गुड। है 29 आते 12 है। देखो स्पेलिंग भी गलत हो रही है इंटेलिजेंट की यार मेरे से, पता नहीं क्यों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाओ। ये 2 लाइन आई है, ठीक है, और ये कुछ और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। ये 3 लाइन्स आ गई, राइट। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जो ये लाइन्स हैं सारी की सारी, इनका कुछ कलर वलर चेंज करना चाह रहा हूँ। मे बी मैं देना चाहता हूँ इसको ब्लू कलर। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, अभी तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने एक पैरा अप्लाई नहीं किया कहीं। इसको अप्लाई करना पड़ेगा इस तरीके से, मुझे लिखना पड़ेगा क्लास पैरा क्लास। जहां जहां अप्लाई करूंगा वहां वहां चेंज होता जाएगा। हुआ चेंज? यस सर। यस सर। अब आप इसको दूसरी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लास इक्वल टू पैरा क्लास, ऐसी क्लास इक्वल टू, जहां जहां अप्लाई करेंगे वहां वहां ब्लू कलर का होता जाएगा। बस हो गया। यही काम वैसे आप क्या कर सकते हैं, बिना इसके भी कर सकते थे वैसे। आपको ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इसको यहाँ पे पी लिख दोगे तब भी काम वही हो जाएगा। ठीक है, फिर पैरा क्लास की कोई जरूरत नहीं है, फिर वैसे ही ब्लू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने पैराग्राफ पे लगाया उसको। ये बात आई समझ में? यस सर। क्योंकि पैरा क्लास तो कुछ है नहीं, अब वो तो हटा दी मैंने, बट मैं उसको रहने देता हूँ फिलहाल। और मैं एक काम करता हूँ, अब मैं पैरा आईडी लेता हूँ और इसमें मैं कुछ कलर करता हूँ और वो कलर होगा रेड कलर का। तो अभी मैंने कहीं आईडी अप्लाई नहीं की इसलिए कोई भी रेड कलर का नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं करना चाहूँ तो मैं कहीं पे उसको कर सकता हूँ, और वो मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ और ये हो गया रेड कलर का। यस सर। ठीक है, क्या मैं इसको दूसरे पे अप्लाई कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे करूँ तो क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? अगर मैं यहाँ पे करूँ तो क्या होगा, कौन बताएगा? यूनिक है तो एरर आ जाएगा सर। कंसोल में एरर आएगा। कंसोल में आएगा। और कौन बताएगा? कंचन बताओ। सर एरर आएगा ना कि आईडी तो यूनिक होती है ना। बताओ, रिया बताओ। रिया बताइए। हाँ सर, एरर आएगी। एरर आएगी, ठीक है, देखते हैं एरर आती कि नहीं आती। कंसोल भी खोल लेते हैं तुम्हारे लिए, ताकि तुम ये ना कहो कि हमारे साथ धोखा हुआ है। लो, कहाँ है एरर? यहाँ तो कोई एरर ही नहीं है सर। फर्क क्या है फिर? यही तो खास बात है, एरर नहीं आती कभी HTML में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। HTML आपके C की तरह नहीं कि आपको एरर बताएगा कि सिंटैक्स एरर आ गई। HTML में जो आप करते हैं वो आपको पता होता है क्या कर रहा हूँ। अगर गलत कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है वो। ठीक है, CSS में भी आपकी जिम्मेदारी है। जावास्क्रिप्ट आपको बता देगा गलत है, लेकिन HTML CSS आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि ये आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ भी गलत नहीं है। वो चेक ही नहीं करता ये चीज कि गलत है ये सही है। वो अनएक्सपेक्टेड आपको कोई आंसर दे देगा। नहीं होगा। चेंज क्या नहीं होगा? मतलब कि वो एरर बताता नहीं है, एरर नहीं बताता वो क्या कहते हैं, एरर नहीं बताता वो, चेंज कर कुछ नहीं करता। फिर ये चेंज तो हो गया, दोनों ये देखो दोनों रेड हो गए, दोनों रेड हो गए देखो। सर या तो आईडी वाला केवल उसमें चलता हो टेबल्स में,
शायद नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बात ये है कि इसको आपको क्वेश्चन बना देते हैं। दोनों एक ही चीज है। सर आपने तो बोला था यूनिक चाहिए होती है। तो तुम्हें क्या दूंगा क्वेश्चन फिर? कंफ्यूज करने के लिए था ना सर। We discussed in the lecture that class can be applied to multiple HTML elements, but ID can be applied to only one element in a page, in a सर web page. कलर के लिए तो नहीं है ये, केवल कलर ही कलर चेंज कर सकते हो आईडी से, ऐसा तो नहीं होता कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं है। We discussed in the lecture that class can be applied to multiple HTML elements, but ID can be applied to only one element in a page. We also रुको हाँ बोलते रहो। सर ये तब तो यूज नहीं होगी ना जब हम जावा स्क्रिप्ट का वर्क करेंगे उस टाइम आईडी। फिर से बोलो। सर जब हम जावा स्क्रिप्ट यूज करेंगे, मतलब अगर सपोज हमें कोई फॉर्म वगैरह बनाना है तो सर उस टाइम पे ये आईडी यूनिक होनी चाहिए, वरना एक से ज्यादा में वही चेंजेस आ जाएंगे। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? ऋषभ? यस सर शायद। बस शायद नाम बता रहे हो अपना या आंसर जो आपने बताया? सर आंसर शायद। अच्छा आंसर शायद है, नाम का कंफर्म है। ओके ठीक है। आपका आंसर ठीक है। एक्चुअली जावा स्क्रिप्ट से ही लिंक है इसका, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में ऐसी कोई जरूरत नहीं होंगी हमारी जब हमको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा डेमो के साथ डिस्क्राइब कर लेना इसको कि कहाँ पे क्या होता है। ठीक है, जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो पता चलेंगे हमको, लेकिन अभी आपको मैं सिर्फ थोड़ा एक स्टडी करने के लिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। और जो मैं आपको दे रहा हूँ आपको डायरेक्टली आंसर नहीं मिलेंगे, आपको खुद ही क्वेरी फ्रेम करके गूगल पे कहीं सर्च वर्च करना पड़ेगा, तब पता चलेंगी चीजें। जिसको पता है उसको ठीक है, जिसको नहीं पता उसको सर्च करना पड़ेगा। We discussed in the lecture that class can be applied to multiple HTML elements, but ID can be applied to only one element in a web page. We also saw that we applied ID to two elements and it worked fine. Can you find the reason behind it? इसका आंसर नो नहीं चलेगा। ठीक है, कहीं आप अगली क्लास में आपने कहा कि मैंने कहा कैन यू फाइंड द रीजन, आपने कहा नो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। इतने में कोई आपको क्वेश्चन या कोई डाउट है तो बता दीजिए। शांत क्यों? नो सर। नो डाउट सर। नो डाउट। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि इसको भी मैं git add git commit ऐसे करना है बस आपको, ऐसे तो बनाने हैं आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे आप। add class and id to file। ठीक है, git push origin। बस आपको ये वीडियो दोबारा आप देख लेना जल्दीबाजी में, फास्ट फॉरवर्ड करके। वैसे मैंने स्पीड से पढ़ाया तो फास्ट फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको आज। ठीक है, अब आपके पास ये सारा का सारा जो भी हमने किया आज यहाँ पड़ा हुआ है ऑलरेडी। देखिए 5 कमिट हो चुके हैं, तो ऐसे 5 कमिट पे ऐसे क्लिक करके देखना, जिसकी भी जो भी आपको ट्राई करना हो। जैसे आपको ये देखना है क्रिएट टेबल यूजिंग HTML CSS, तो यहाँ जाइए, देखिए हमने क्या किया, समझिए इसको। अगर आपको देखना है कि आईडी और क्लास वाला जो हमने कहाँ किया हो, ऐड आईडी एंड क्लास, तो इस पे क्लिक करो, आपको दिख जाएगा कहाँ पे चेंज हुआ। तो ये चेंज हुआ बेसिकली। यस सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत हो गया आज के लिए। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो जल्दी से। नो सर। नहीं है नो कुछ? सर। ठीक है, नो सर।
आप सबको धीरे धीरे एक काम करना है। वैसे अभी मैं आपको एक डॉक्यूमेंट बना के दे भी दूंगा इसका, छोटा सा कुछ आइडिया सोचना है आप लोगों को, ठीक है? 3-4 लोग मिलके काम कर सकते हैं उसमें। कुछ छोटी सी एप्लीकेशन सोचनी है आपको कि हम ये करेंगे वेब में। वो एज सिंपल एज लॉगिन फॉर्म भी हो सकता है, कोई छोटा सा हो सकता है काम, ठीक है? और वो आप लोगों को बनाना है फिर, ठीक है? तब तो आप सोचते रहिएगा, जिस दिन आपको डॉक्यूमेंट दूंगा उस दिन अपना ग्रुप बना के स्टार्ट कर देना काम, ठीक है? ओके यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ रिया, क्या बोल रही हैं आप? सर ये कब तक देना है? कब तक देना है वो मैं आपको बता दूंगा ना, आप तब तक सोचो आराम से अपने दोस्तों के साथ मिलके कि क्या कर सकते हैं, कोई छोटी एप्लीकेशन। ओके सर। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर।